Hi, good afternoon. This is Vikram Bir Singh. I'm one of the founders at Ananta Hempworks. Ananta Hempworks is a hemp-based solution company. हम लोग हेम बेस के अंदर मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रिशनल आइटम्स, पेट के रेंज इन सारे एरियाज के अंदर काम करते हैं. And Ananta Hempworks is totally focused on making Ayurvedic medicines out of hemp and providing it to all the doctors who can provide it to the maximum patients. The company vision is actually to connect with all Ayurvedic doctors and build up the biggest Ayurvedic doctor community for the hemp medicine sector. This is Ananta Sambhasha, session 4. We meet every Wednesday or every Friday, and we have different doctors with different specialities who talk at different levels and different topics. Today, we have Dr. Ashish Mahajan, who is joined us. Dr. Ashish Mahajan is an MD Ayurved, who is Associate Professor and Head of Department at Jammu Institute of Ayurveda and Research. He's a founder of Mrityunjay Rashala, and he's a consultant physician and a certified Nadi Vaidya. He's also enlisted in the panel of consulting patients globally via portal alveda.ch based in Roll, Switzerland. He's also empaneled in the list of the World Ayurveda Specialist, and he's a supporting member of Association of Ayurvedic Professionals of North America. Dr. Saab today has a lot of knowledge and he has a lot of experience, and we are really excited to learn from him on the topic of arthritis and pain management with hemp leaf-based medicines. Dr. Saab has been using this medicines for a very long time, and we have had the good fortune and the opportunity of connecting with him recently. And he's used our medicines, and we have some positive results. So today we're going to be talking about this topic, and I hope everybody who's joined us today and everybody who will be joining us today will get the right and knowledgeable session, which we जो हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि हम हर हफ्ते किसी टॉपिक पे ऐसी नॉलेज लेके आएँ जिससे आप डॉक्टर्स को और जो भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो, वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर उसको इन्वॉल्व कर सकें. उनके कोई क्वेश्चंस हो वो हमारे साथ हम अभी डिस्कशन करेंगे. उसके बाद सेशन के बाद जहाँ पे हम टॉपिक अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं. चैट बॉक्स में हमारी पर्सनल डिटेल्स रहती हैं. अगर आप किसी भी डॉक्टर को किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन है, मेडिसिन का है या कोई और क्वेरी है, वो हमारे से डायरेक्टली इन टच हो सकते हैं. अनंता हेम्पवर्क का यही विजन है कि हम आपके जैसे डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करें और हम इस प्रैक्टिस को और इस मेडिसिन को इसके सही माध्यम से, सही तरीके से और सही पोजीशन पे हम इस कंट्री के अंदर लेके आ पाएँ. तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डॉक्टर आशीष महाजन को वेलकम करते हैं. डॉक्टर साहब, वेलकम टू द सेशन. दिस इज द फर्स्ट सेशन अनंता इज डूइंग विद यू, एंड आई होप वी डू मोर एंड मोर सेशंस विद यू इन द फ्यूचर. Welcome to Ananta Sambhasha, and we are very glad that we'll be talking about this topic of arthritis and pain management, because I think ये बहुत बड़ा issue है, and arthritis is something which I think everybody or every second person will find in some of the family members or friends network. And we have realized, and जो मेरी knowledge कहती है, इसके अंदर maximum जो पेन मैनेजमेंट के अंदर जो दवाइयाँ यूज़ होती है वो जनरली ओपियोइड से यूज़ होते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म पेन मैनेजमेंट रहता है तो उसके अंदर बॉडी का काफ़ी डैमेजिंग इफेक्ट रहता है. तो डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हुए इस टॉपिक के अंदर आप प्लीज़ हमारे को ज़रा बताइए और डिटेल में समझाइए कि आर्थराइटिस पेन मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी ये हेम्प लीफ बेस्ड मेडिसिन हैं, उनका क्या फ़ायदा रह सकता है, और हम इसके अंदर और अपनी आपकी मतलब प्रैक्टिस को पेशेंट को और हम कैसे बेनिफिट्स दे सकते हैं. वेलकम सबसे अगेन. पहले नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार, और हाईली थैंकफुल टू मिस्टर विक्रम, मिस्टर पीयूष जुनेजा, इंडियन वैद्यास, और ख़ास तौर पर मेनली उन सभी हेम्प की कंपनीज़ को जिन्होंने हमारा वंडर ड्रग था जो लुप्त हो चुका है या हो रहा है उसे रिवाइव किया. आई एम वेरी 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 हाईली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. तो डॉक्टर साहब ने मेरी इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा बढ़ावट चढ़ा के दे दी. मैं एक नॉर्मल सा एक तुच्छ वैद्य हूँ जो थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ अपनी पद्धति के साथ चलने की और अपनी पद्धति को आगे बढ़ाने की. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष महाजन. ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि विजया, हेम्प, कैनाबिस, भांग, बहुत से नाम हैं, जितने लोग हैं उतने कम हैं. ये शुरुआत हमारे लिए कहाँ से हुई, हम सबसे कहाँ से शुरुआत हुई, तो इसके लिए एक छोटी सी एक टर्मिनोलॉजी है, एक छोटा सा एक ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. तो अथर्ववेद में क्या कहा गया है? पंचराज्यानि वृद्धुम सोम श्रेष्ठानि भ्रूमा.
धर्मो भंगो यवः सहतेनो मुच्यन्ति हंस। तो इन 4 पंक्तियों में वेदों ने हमें इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज दे दी, जो काफ़ी समय तक, अब इस मंच में इतना तो नहीं बोलूँगा कि किस समय तक, मतलब 1895 से पहले तक हम बहुत हद तक हर चीज़ में इसको यूज़ करते थे। उसके बाद कुछ कारणों से वो बंद करवा दी गई। तो इसमें जो आप देख रहे हैं पंचराज्यानि वृद्धुम, तो क्या बोला गया है कि जितने भी हमारे पास पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें से 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो सोम प्रदान करती हैं। सोम, आप सोम सोचोगे, सोम रस कोई बोलता है, कोई सोम बोलता है। सोम मीन्स अ मेंटल पीस ऑफ माइंड। सोम मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन। सोम मीन्स अवे फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंसेस। तो सोम अपने आप में ही एक बहुत गूढ़ अर्थ रखता है, लेकिन यहाँ भंगा शब्द जो वर्ड यूज़ किया है वो भंगा किया है। आज हम इसे भांग बोलें, आज हम इसे विजय बोलें, आज हम इसे हैम्प बोलें, आज हम इसे कैनबिस बोलें, आज हम इसकी डेफिनेशंस में टीएचसी लाएं, सीबीडी लाएं, कुछ भी लाएं, लेकिन जो हमारे आचार्य, जो हमारे अथर्ववेदों में जो बोला गया, वो सोम को इतना महत्व भंगा को दिया है जितना और किसी चीज़ को नहीं दिया। क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग जो भांग को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो या भांग के बारे में जानते हैं, तो हर चीज़ कहते हैं कि भांग इकलौता ऐसा है जो रोटी कपड़ा मकान तीनों देता है। सही लेकिन बात। हमारे यहाँ पर अब क्या है, हमें रोटी कपड़ा मकान सेकेंडरी है। एज ए वैद्य हम भांग से क्या क्या कर सकते हैं। तो भांग के लिए क्या बोला है, भांग का जो वर्ड है वो अपने आप में बना है भज्यति से। वो जो वर्ड है वो बड़ा सिंपल सा वर्ड है, भज्यते। भज्यते क्या समझते हैं हम? भज्यते मीन्स ब्रेक करना, स्प्लिट करना। तो अब भांग क्या इंसान को स्प्लिट करती है? जैसी धारणाएं बनी हैं कि भांग पीने के बाद या भांग खाने के बाद क्या होता है, लोग अपने होश खो देते हैं, दे वेंट आउट ऑफ देयर माइंड, दे डू ऑल दीज थिंग्स। नहीं, भांग स्प्लिट जरूर करता है, बट इट स्प्लिट्स you from mental stress. It splits you from the burden of your own self. अब burden of your own self क्या है? आपकी कोई भी पेन, आपकी कैसी भी पेन हो, आपको कैसा भी स्ट्रेस हो, इस चीज़ को ये स्प्लिट करता है, इस चीज़ को ये हटाता है, इस चीज़ को ये ब्रेक करता है। तो ये बड़ा टिपिकल सा वर्ड है जो भांग यूज़ किया है इन्होंने। भंगा, भंगा को यूज़ करने का मतलब ही यही था कि एक स्प्लिट देना, एक टिपिकल स्प्लिट फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर ओन सेल्फ, की जो आप, मतलब जिन चीज़ों से आपको दुख पहुंच रहा है, जिन चीज़ों से आपको पीड़ा पहुंच रही है, उन चीज़ों को ये दूर करता है। अब पीड़ा हर किस्म की है। दरिद्रता हो तो भांग को इस्तेमाल करिए, भांग के कपड़े बनाइए, दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके पास खाने को कुछ नहीं है, भांग के सीड्स ले लिए तो भांग के सीड्स खा लो, आपका सारा प्रोटीन हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, पेन हो रही है, भांग के लीफ का आप चटनी बना के या उसकी मेडिसिन यूज़ कर लीजिए तो दूर हो जाएगा। तो वो स्प्लिट आपको रोटी भी देगा, कपड़ा, फाइबर उसका कपड़ा भी देगा, मकान भी देगा, और आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करेगा, बहुत ज़्यादा दूर करेगा। तो एक टिपिकल लाइन में हर जगह बोलता हूँ, क्या भांग क्या है? इज इट यूज्ड फॉर गिविंग यू ए ब्रेक और गिव यू ए ब्रेक डाउन? तो यहाँ पर एक बड़ा टिपिकल सा है, आइदर इट गिव्स यू ए ब्रेक और गिव्स यू ए ब्रेक डाउन। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको ब्रेक देगा, बिल्कुल देगा, आपकी पीड़ाओं से ब्रेक देगा, आपकी समस्याओं से ब्रेक देगा, आपकी पेन से देगा, आपकी डेली लाइफ टू लाइफ में ब्रेक देगा, आपको अच्छा बनाने में हेल्प करेगा। और अगर वही अत्यधिक मात्रा में लिया जाए या किसी और चीज़ों के साथ मिला के लिया जाए, जैसा कि आजकल हो रहा है, तो वो क्या करेगा? ब्रेक डाउन लाएगा। तो ये पहलू है सिक्के के दो। कोई भी चीज़ उसके दो पहलू होते हैं। तो आइदर इट विल गिव यू ए ब्रेक और गिव यू ए ब्रेक डाउन, एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू, and it depends upon us, even the companies, we doctors, we practitioners, everyone, we are giving it for a breakdown or for a good break. So let's start with some of the first I want to just if we have time, Vikram, can I just elaborate the importance of bhang in our area or in our this ethics, or have we time? 5 minutes? Definitely, Doctor Saab, please take your time. सो एवरीबॉडी, आजकल क्या है ना, हर कोई जिसको बोलो ना भांग की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम द ओनली प्रैक्टिशनर एंड आई एम द फर्स्ट प्रैक्टिशनर इन जम्मू हु इज यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम 2019। तो जब मैं किसी को बोलता हूँ ना कि जब वो देखते हैं इसमें भांग पड़ा है, डॉक्टर साहब आपकी क्लिनिक में तो सारा भांग का भांग है, ठीक है, तो ये आप भांग दे रहे हो, ये आप क्या, ये तो नशा, ये तो एडिक्ट कर देगा। तो बेसिकली क्या है कि फिर उनको मैं समझाता हूँ, मैं, आप अगर
शुगर की मेडिसिन खा रहे हो, 25 साल से खा रहे हो, क्या एडिक्टेड हो गए? वो तो खा ही रहे हो ना। अगर आप पेन किलर खा रहे हो, पिछले 15 साल से खा रहे हो, 20 साल से खा रहे हो, क्या एडिक्टेड, उसकी एडिक्शन आपको नहीं दिखी? तो अगर हमारी विजया जो हमने प्रोसेस करके, उसका शोधन करके और प्रॉपर डोज में दे रहे हैं, तो क्या एडिक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन उसके लिए यू शुड नीड योर ओन कॉन्फिडेंस। तो उसके लिए क्या है कि हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है, और हमें, हाँ, हमें एक तो थैंकफुल भी रहना चाहिए कंपनीज को, और वी मस्ट हैव अ चेक ऑन द कंपनीज की क्या वो सेल बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए, क्या वो प्रॉपर मेथोलॉजी जो है वो यूज़ कर रही है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको भांग के रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ कि अजंता एलोरा केव्स के पास जो हमारा कैलाश टेम्पल है, आज तक उसका स्टोन कोई खराब नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो अब लोगों को बड़ी हैरानगी होगी सुन के कि उसके ऊपर एक लेयरिंग पाई गई थी, जो किससे बनी थी? भांग के तेल से, कैनाबिस ऑयल की एक लेयरिंग उस पर लगाई गई थी। तो सोचो इसका कितना बड़ा इफेक्ट है एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल। अच्छा, अभी एक कंपनी है, कनाडा की कंपनी है, दे हैव टेकन अ पेटेंट ऑन द फाइबर ऑफ भांग। विजया के फाइबर पे पेटेंट ले लिया है। वो अंडरगारमेंट्स बनाते हैं, और दे हैव टेकन द पेटेंट। और वो पेटेंट में क्या बोला है कि इट विल प्रिवेंट कैंसर, इट विल प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऑल दिस जेनेटल कैंसर्स। वो कैसे प्रिवेंट करेगा कि अगर आप ये हेम्प वेस्ट जो फाइबर से बने हुए अगर आप अंडरगारमेंट्स लेंगे, तो उनसे वो बैक्टीरिया या वायरस या जो भी है वो इन्फेक्शन होने नहीं देगा। तो सोचो कि वो पेटेंट करवा रहे हैं, और हम आज भी उसी में है कि अरे ये तो डॉक्टर भी भांग की दवाई देता, तो ये तो वैसे भी खुद भी भांग खाता होगा। तो ये एक मेंटेलिटी है विच वी हैव टू चेंज। और ये Change. बहुत ज़रूरी है, जो संभाषाएं जो हैं ये पूरी ऑल ओवर इंडिया, क्या वर्ल्ड में ये होते रहने चाहिए। मैं कहता हूँ हर डॉक्टर जो आयुर्वेद से जुड़ा है, हर वो इंसान जो इंडियन कल्चर से जुड़ा है किसी ना किसी वे से, दे मस्ट गो फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ दिस हेम्प, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी अदर वे, इवन नॉट इवन मेडिसिनली। फार्मर्स के लिए बूम है आज की डेट में। आपको पता है कि फार्मर्स जो हैं वो उनकी जो ग्रोथ है बहुत कम है, और भांग एक लौता ऐसा एक कल्टीवेशन है जो विद इन 4 मंथ्स तैयार हो जाती है, और अगेन आप नेक्स्ट 4 मंथ में उसकी फिर से खेती कर लोगे। तो एवरी Correct. मतलब साल में 3 बार आप कल्टीवेशन कर रहे हो और सेम यील्ड ला रहे हो, और उसमें आपको कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको प्रोसेसिंग नहीं करनी और कुछ नहीं करना। बस ये है कि हाँ, यू हैव टू चेक द पेस्टिसाइड्स की, उसमें क्या आप पेस्टिसाइड वगैरह तो नहीं डाल रहे, तो वो नॉर्मल इश्यूज हैं। और वैसे भी भांग के लिए कोई पर्टिकुलर कैसा कुछ नहीं चाहिए। आप देखो कहीं भी भांग, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भांग लग जाती है। और माइथोलॉजिकली देखो भांग को क्या बोला गया है, भांग को हमारे मतलब हिंदू कल्चर में या इंडियंस को या हिंदूज को सभी, भांग को भगवान भोलेनाथ ने दिया था। भगवान शंकर ने भांग को दिया क्यों था? तो जब समुद्र मंथन हुआ और सारा का सारा अमृत देवता ले गए, तो अब मनुष्य जो थे वो भी देवता के पास गए कि बोले आपने हमारी धरती को, हमारी माता को आपने चर्न किया, देव चर्न ड्यूरिंग समुद्र मंथन, तो आपने इसको तहस नहस कर दिया, आपने हमारे लिए कुछ नहीं रखा, तो हम मानव अब इस धरती का क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला था कि मैं आपको अमृत से बड़ा अमृत दूंगा, जो अमृत हमने लिया है उससे भी बड़ा अमृत आपको दूंगा, और जो जब तक पृथ्वी है, पानी होगा नहीं होगा, जब तक पृथ्वी है वो अमृत आपके साथ रहेगा। और वो अमृत और कुछ नहीं था, वो विजया थी, भांग। तो ये एक मैथोलॉजिकल, ये कहने का क्या, मैथोलॉजी का क्या मतलब कि भांग जब तक आपके पास है, ना आप पे दरिद्रता आएगी, ना आप पे बीमारियां आएंगी, ना ही आपको कोई जनरल वीकनेस आएगी। बिकॉज जो सीड्स ऑफ विजय हैं वेरी 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 गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ओमेगाज Yes. के, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। और कितने एल्कलाइड्स हैं अभी तो रिसर्च हो रही हैं। अभी कभी सीबीडी निकाल रहे हैं, टीएचसी निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, कैनाबाइट सिस्टम निकाल रहे हैं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है इस पे, लेकिन स्टिल जितना हो रहा है वो भी बहुत है। तो ये एक मैथोलॉजिकली है कि भांग का क्या क्या हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर भांग पे बोलना स्टार्ट करूंगा तो वो खत्म ही नहीं होगा। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन ये बहुत ही पैशनेट टॉपिक है हमारे लिए, और इस पे बात अगर शुरू हो गई तो रुकेगी नहीं फिर। तो ये खत्म ही नहीं होती। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो विजय इसको कहा है, विजय मतलब विजय, विजय विजय मीन्स विक्ट्री। यू गेट विक्ट्री फ्रॉम एनीथिंग, तो इसीलिए इसका नाम विजय एक पड़ा है। ठीक है, स्पिरिचुअल और मेडिसिनल इसका एस्पेक्ट दोनों दिए हैं। मेडिसिनल क्वालिटीज जो हैं प्लांट की, इनको नार्कोटिक प्रिंसिपल्स के लिए दिया गया है। लेकिन ये 1895 के बाद जब अल्कोहल को बेचने के लिए मुहिम चली,
तो हमारी भांग को बंद किया गया। बंद किया गया। तो एक कभी पढ़ना, 3,500 पेज की एक रिपोर्ट है, हेम्प कमीशन अंग्रेज़ों ने बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन को, स्टेरॉइड्स को बेचना था और अल्कोहल को बेचना था, तो इसको उन्होंने बंद किया। तो अब देखो, अर्थराइटिस क्या है? आयुर्वेद में अर्थराइटिस बहुत सी चीज़ें हैं। जोड़ों में कहीं भी पेन कुछ भी हो तो वो अर्थराइटिस है। तो अब जो भांग है, आपको सिर्फ एक अर्थराइटिस नहीं, सिर्फ अर्थराइटिस में तो ये हमें विक्रम ने बोला कि आप अर्थराइटिस में सर कहिए, मैं आपको अब जब केस शीट्स मैं दिखाऊंगा ना, मैंने खुद वो मिरेकल्स देखे हैं जो जो मैं सोच नहीं सकता था कि ये चीज़ हो सकती है क्या इससे। तो मैं ऑन द होल बताऊंगा कि एनी वेयर यू आर सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, यू विल हैव टू यू गो विद एनी प्रोडक्ट ऑफ विजया एंड यू विल फाइंड रिजल्ट्स डेफिनेटली। तो आयुर्वेदिक जो नॉमेनक्लेचर है उसको अगर हम मॉडर्न में लेके जाएं तो हमारा जो फुलफिल नहीं हो पाती हर चीज़। स्टिल आयुर्वेद मॉडर्न में रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑर्थो अर्थराइटिस, गोटी अर्थराइटिस बोला गया है, और हमारे में उससे भी बढ़कर आगे बहुत कुछ है जो एक केस आपको बताऊंगा भी। तो अब ज़्यादा इसके बारे में, ये सब वैद्य लोग हैं जो भी हैं, उनको ये पता है कि अर्थराइटिस होता क्या है। तो अब जो कैनाबिस है उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है? जो फर्स्ट कैनाबिस का जो फाइबर हमें मिला, ये नहीं कहूँगा कि जो फर्स्ट यूज़ हुआ, जो हमें मिला वो 4000 BC, 4000 BC, एंड दैट टू इन चाइना, एंड चाइना इज़ नॉट फॉर अवे फ्रॉम इंडिया। वो हिंदकुश पर्वत के आसपास, वो इंडियन कल्चर का ही एक तरह का हिस्सा समझिए। और अथर्ववेद में ऑलमोस्ट 1500 BC पहले इसके पूरा वर्णन दिया है। और नेक्स्ट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग तो अभी इसमें कर रहे हैं, देखो बोटानिकल डिस्क्रिप्शन बहुत सारी हैं, इसकी डिविजन्स क्या हैं, ये क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? हर जगह है, अल्मोड़ा में, गढ़वाल में, नैनीताल में, उत्तराखंड में, ठीक है, कश्मीर में, त्रैवंकोर में, हर जगह। और कल्टीवेटेड इंडिया में कल्टीवेशन 900 BC से पहले से स्टार्ट हो गई थी। तो केमिकल कॉन्स्टेंट जो अभी तो बहुत सारे हैं, 22, 25 बहुत से निकले हैं, लेकिन मेन इसमें जो CBD और THC है, जो इस टाइम पे जिस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है एज मेडिसिनली जो यूज़ हो रही है, वो ये हो रही है। अब देखो, मैं आपको एक ये स्लाइड अगर सबको दिख रही होगी तो मैं एक चीज़ शो करना चाहता हूँ। देखो कितने आर्टिकल्स इस पे हो चुके हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है। एंटी हेलमेथिक, एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी नोजिया, एंटी वोमिटिंग, एफ्रोडियासिक, ठीक है। आप you name the disease and there is a journal, there is an article on it, and I have written the references of that article also, because already work has done but the work doesn't comes out। वो क्यों बाहर नहीं आता? क्योंकि इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। अच्छा, जो करना चाहता है उसकी कोई सुनना नहीं चाहता। अब देखो, डायरिया में, डायबिटीज में, डाइसेंट्री में, इन्फ्लेमेशन में, यू नेम एनी डिजीज, यू विल फाइंड इट्स एक्टिविटी इन दैट। तो आयुर्वेदिक डिस्क्रिप्शन जो है इसको उपविश बोला है, उसके पीछे रीजंस थे। Up means small, wish means poison. Even if you take food in more quantity, it will act as a poison. So ये उपमा जो उपविश की दी है, इसके पीछे रीजन क्या थे कि पर्टिकुलर अमाउंट में, पर्टिकुलर शोधन प्रोसेस के बाद अगर हम इसको यूज करेंगे, देन इट्स अ अमृत, इट्स अ नेक्टर। बट इफ वी यूज unjudicially and without the knowledge of shodhana, then it can cause slight, I am again telling, slight poisonous effect on your body because it's a उपविश। मैंने आज तक नहीं सुना है भांग से कोई मरा है, भांग खा के कोई मरा हो, मैंने आज तक नहीं देखा है पिछले 12 साल की प्रैक्टिस में या कहीं भी कि भांग से कोई मरा होगा, भांग की ओवरडोज से। हाँ, भांग में धतूरा मिक्स करते हैं लोग, बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद हुई होगी। सिर्फ भांग पी के अगर किसी को कुछ हुआ है तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में बताया कि जो है वो कैसी है, बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, कलर होता है, आप ऑलरेडी इसको जानते हैं। अच्छा, आयुर्वेद में इसकी डोजेज, बड़ी पर्टिकुलर डोजेज इसकी बताई है, 250 to 500 mg अप्रोक्सीमेटली। तो ये डोजेज है इसके सीड पाउडर की, इसके लीव्स के पाउडर की, तो बड़ी मिनिमल एक डोज बताइए। अब देखें, आयुर्वेद में एक टेक्स्ट हुए आनंद कंद, रसशास्त्र का एक टेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, बहुत अच्छी किताब है। He is the first person who has given a whole chapter on विजया और भांग और कैनाबिस। एक पूरा का पूरा चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है इस टेक्स्ट में, ठीक है। ये नंदी और शिवजी के बीच की बात की एक किताब है, और इस अनंत कंद के एक पूरा चैप्टर जो है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होनी चाहिए, उसकी टाइप्स कैसी होती है। देखिए, टाइप्स भी अकॉर्डिंग टू यू बताया है, टाइप्स कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ऑन मतलब कितना उनको नॉलेज था कि उन्होंने
हर एक मतलब एक भांग पे ही पूरा का पूरा चैप्टर, नॉट इन ए सिंगल पैराग्राफ और अ टॉपिक, अ होल चैप्टर ऑन भांग उन्होंने अनंतकंद में डिस्क्राइब किया। तो ये कुछ वर्नाकुलर नेम्स हैं, इनको दिखाने, स्लाइड दिखाने का मतलब इसलिए है कि बहुत सी जगह एक चीज़ को बड़ा अलग अलग नाम से बोला जाता है। और आप एक चीज़ नोट करना, मैं पूरी स्लाइड्स में भांग ही बोलूंगा, मैं कैनाबिस भी नहीं बोलूंगा, हैम्प भी नहीं बोलूंगा, विजय भी नहीं बोलूंगा, गांजा भी नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ भांग बोलूंगा। उसके पीछे रीजंस है। अब यहाँ देखिए, हिंदी में इसको भांग और भंगा कहते हैं, ठीक है, तेलुगु में गजियाई कहते हैं, गांजियाई। तो आप गांजा भांग समझ लीजिए। बाकी आप जितने भी नाम देखेंगे, इंग्लिश को छोड़ दीजिए, इंडियन हैम, असमीज में भान एंड भांग, बंगाली में भांग, गुजराती में भांग, ठीक है, कन्नड़ में गंजगड़ा, कश्मीरी में पुंग बांगी, बांगी मतलब बांगी अगेन कम्स फ्रॉम भांग। तो आप जहां भी नाम देखेंगे, ठीक है, मराठी में देखेंगे भांग, ओडिया में देखेंगे भांग, पंजाबी में देखेंगे भांग, ठीक है, उर्दू में भी देखेंगे तो एक नाम भांग है। तो मैं मैक्सिमम भांग इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वर्नाकुलर नेम है ऑल ओवर इंडिया के लोग, मैं चाहता हूँ कि ये इसके बारे में जाने और सुने, और वो कंफ्यूज ना हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं भांग पे ही बात कर रहा हूँ। सिनोनियम्स, बहुत से सिनोनियम्स है, मतलब क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, उसकी मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, शिव मूली, क्या बोला है, शिव का मूल, शिव ने ही मूलतः हमें दिया, तो शिव मूली। विजया, हमें विक्ट्री देता है हर चीज से। भांग, अब मैंने आपको भांग का बताया था कि वो हर किस्म के डिजीज, सोम है, श्रेष्ठ सोम है, हर डिजीज से आपको दूर करता है, ठीक है। दिव्य, ये आपको प्लेजर देता है। तो बहुत से नाम है, जितने आप देखोगे सबके डिफरेंट मीनिंग्स हैं अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अब देखिए, आयुर्वेद में प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आप ड्रग लेते हैं तो हमारे पास एलोपैथिक में साल्ट्स होते हैं, आयुर्वेद में ऑन द होल होता है, वी नीड ऑन द होल। अब बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आप एक्सट्रैक्ट नहीं निकालते, आप एक्सट्रैक्ट को यूज़ करिए, तो वी कांट यूज़ एक्सट्रैक्ट्स, वी नीड डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। और कोई भी सिंगल फॉर्मुलेशन आपको ईजिली नहीं मिलेगी आयुर्वेद में। तो यहाँ पर रस, रस मतलब टेस्ट, वो आप जब लेंगे वो कैसा होगा, स्लाइटली पंजेंट एंड बिटर, ठीक है, जब आप उसका थोड़ा सा पंजेंट बिटर टेस्ट होता है। जो उसके गुण बताए हैं, देखिए गुण, कोई भी जो चीज़ क्विक इफेक्ट करती है बहुत जल्दी, चाहे वो पॉइजन, अच्छा पॉइजन में और जो नेक्टर है उसे हम आयुर्वेद में ओज कहते हैं, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, वो अपोजिट हैं एक दूसरे के। लेकिन लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिए, गुण जो इसका क्वालिटी बोली है, लघु और तीक्ष्ण, लघु तीक्ष्ण के कारण ही विजय जो है, भांग जो है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वो क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि तीक्ष्ण मीन्स इट कट्स एनीथिंग, इट्स पेनिट्रेट्स एनीथिंग, वो आपके किसी भी लास्ट लॉक चीज, जो लॉक एंड की चैनल जो किसी भी एंजाइम ने, कैटलिस्ट ने जो आपके अंदर बनाया है, वो उसको तक तोड़ने के काम आ जाती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर तक जाती है। और लघु, लाइट, जैसे हम लघु बोलते हैं भगवान हनुमान जी को, कहीं भी सूक्ष्म रूप में कहीं चले जाते थे, वैसे ही ये बॉडी के किसी भी पार्ट में चले जाती है। तो वीर्य, पोटेंसी, क्या होता है कि कुछ मेडिसिन, अब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में वीर्य वो पोटेंसी दे डोंट नो, बट क्या होता है कि पोटेंसी होती है। कभी हमारी बॉडी को बहुत हीट लग रही होती है तो हमारा मन करता है ना ठंडी ठंडी चीज़ें लें, और कभी बॉडी को बहुत सर्दी लग रही होती है तो हमारा मन करता है हम गर्म चाय पिए। तो दैट्स अ वीर्य, दैट्स अ पोटेंसी। और यही पोटेंसी जो हमारे, जो विजय की है, भांग की है, दैट इज उष्ण। उष्ण मीन्स इट इज हॉट इन पोटेंसी, इट्स हॉट, मतलब ये थोड़ी सी उष्णता लाएगा। और जहाँ भी आपको, जहाँ जहाँ भी जो भी बीमारी हमारे आयुर्वेद में बोला गया है, कोई भी बीमारी है उसकी शुरुआत जो होती है वो वात से होती है, और वात की श्रेष्ठ चिकित्सा में उष्ण गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट विपाक, विपाक मीन्स इसका जो पोस्ट डाइजेस्टिव जो टेस्ट रहता है वो कैसा रहता है, इट्स कटु, पंजेंट होता है। तो कटु का भी अपना बहुत खूब एक इफेक्ट है कि इवन आफ्टर डाइजेशन ये बॉडी में घूम के आपके जो डिजायर्ड इफेक्ट्स हैं वो दे के जाएगा। तो दोष पे क्या करता है, पित्त दोष वालों को, जो ऑलरेडी पित्तज हैं, जिनकी बड़ी उष्ण जिनकी प्रॉपर्टी है, उनमें थोड़ा सा अवॉइड डोज थोड़ी सी कम करनी चाहिए। जो वात वाले, पेन जहाँ भी होगी, जहाँ भी वात होगा वहाँ पर इसको देना है। ये वातहर है, कफहर है, जहाँ भी कफ का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी तो इसको हम दे सकते हैं। देन थेरापेटिक प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन वर्ड यूज़ करना तो गलत है, बहुत से लोग देख रहे हैं, वो बाद में मेरे को शायद बोलेंगे कि डॉक्टर साहब अब तो रसशास्त्र वाले होकर फिर प्यूरिफिकेशन लिख रहे हैं। बट क्या करें, सबको बताने के लिए थेरापेटिक प्यूरिफिकेशन इसलिए मैंने लिखा है। द वर्ड इज शोधना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्यूरिफिकेशन एंड शोधन। तो शोधना वर्ड क्या होता है कि आपको कोई भी आपके पास चीज़ दी,
आप उसको ऐसा प्रोसेस करो कि उसके अंदर की इम्प्योरिटी भी निकल जाए और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उनकी पोटेंसी इंक्रीज हो जाए, उनका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाए। तो विजय को भी डायरेक्ट, भांग को भी डायरेक्ट लेने के लिए नहीं बोला गया। यू कांट टेक, आपने पत्ते लिए और उनको मुंह में डाल दिया और भांग खा ली तो आप अमर हो गए, आपको नेक्टर मिल गया, ऐसा नहीं है। यू नीड अ प्रॉपर थेरेपेटिक प्यूरिफिकेशन। और बहुत से इसमें प्यूरिफिकेशन के वेज बताए हैं। छाँव में सुखा लो, शेडो में सुखा के यू कैन फ्राई इन क्लैरिफाइड बटर। ओके, आप मतलब देसी घी में, शुद्ध देसी घी में इसको फ्राई कर दो। आप इसको पानी से धोते रहो, तब तक धोते रहो जब तक इसका ग्रीनिश कलर इसके पत्तों से बाहर ना आए। ठीक है, आप इसको दूध में पका लो। बहुत से तरीके बताए हैं। और एक तरीका जो है वो API हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुले ऑफ इंडिया में, फार्माकोपी ऑफ इंडिया में एक दिया हुआ है। उसमें जब इन्होंने 3-4 प्रोसेस को किया था, और इस प्रोसेस में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो CBD और THC का कंटेंट है वो इतना ज़्यादा कम नहीं होता एज कम्पेयर टू जो बाकी प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन जो आयुर्वेद में प्रोसेस बताए थे उनके पीछे भी बड़े रीजंस थे। आपको हर जगह THC नहीं चाहिए, आपको हर जगह CBD नहीं चाहिए, कहीं आपको THC चाहिए, कहीं आपको CBD चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, वो डिफरेंट आपको शोधन के प्रोसेस बताए थे कि कहाँ THC आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको वो वाला शोधन करना है, कहाँ आपको THC बहुत कम चाहिए तो आपको ऐसा शोधन करना है। लेकिन आज क्या एक स्टैंडर्डाइज, ड्यू टू सम स्टैंडर्डाइजिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन इशू और ग्लोबली वी वांट टू एक्सेप्ट आवर पैथी, so that's why we need a standard procedure, standard protocol. So that's why API has taken a standard protocol. ठीक है, उससे ये शोधन करते हैं। और मैं इसको एलोबरेट जानबूझ के नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक लेमैन या जो भी जो सुन रहे हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं है वो ज़्यादा वो शोधन करके वो घर पे यूज़ करना शुरू कर दें। क्योंकि भांग तो आपको अबंडेंटली मिल जाएगी, लेकिन आप उसको यूज़ कर लें, वो मैं इसलिए मैं प्रॉपर उनको बता नहीं रहा हूँ। देन जो टेक्स्ट में थेरेपेटिक इंडिकेशंस बताई हैं वो कितनी हैं आप काउंट कर लो। मैं 50 तक लिख पाया हूँ, उसके बाद मुझे बहुत मिल रही थी, मैं रोक दिया। 50 तक मैं लिख चुका हूँ कि 50 थेरेपेटिक इंडिकेशंस मुझे मिल चुकी हैं। मेन मतलब 50 जो मेन है, इसके सब कंडीशंस तो छोड़ दो, ये 50 मेन है। देन बिल्कुल लिटिल मैं दे रहा हूँ, जो बहुत सी इसमें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये अनंता हैं या बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो सब इन पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इसमें से कुछ तो बना रहे हैं और कुछ अभी उसके बारे में सोचा नहीं है। तो देखो, इंद्रसान चूर्ण करके एक आता है, कुष्ठ रोग। आज की डेट में स्किन डिजीज का अल्टर कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथ में, इवन स्टेरॉइड्स। आयुर्वेद में भी बहुत टफ है, बट क्लासिकली जो विजया का एक इंडिकेशन जो ड्रग दिया है वो दिया है इंद्रसन चूर्ण। ठीक है, कुष्ठ रोगों में। देन जाति फालदी चूर्ण बना रहे हैं, मैं बहुत सी कंपनीज बना रही हैं, अनंता वाले भी बना रहे हैं। देन जय पुटपाक, राइनाइटिस, बहुत से पेशेंट राइनाइटिस से शिकार होते हैं, तो उसके लिए भी अब काउंट करते जाइए। मैंने बड़ी कम लिखी है अभी। कमेश्वर मोदक ऑलरेडी बन रही है, लाई चूर्ण गृहिणी के लिए। देन नारदीय लक्ष्मी विलास रस, आजकल नारदीय मार्केट में आता है, लेकिन नारदीय ओरिजिनल लक्ष्मी विलास रस नारदीय जो है वो विद विजया है। और अगर आप उस लक्ष्मी विलास रस नारदीय को यूज़ कर लोगे तो कोल्ड, कफ, हेडेक, ये तीनों में सिंगल टेबलेट काम करती है। इवन मैं लक्ष्मी विलास रस यूज़ करता हूँ, मैंने पिछले 12 साल से कोई एंटीबायोटिक नहीं खाई है, मेरे घर पे कोई एंटीबायोटिक नहीं खाता। ठीक है, तो लक्ष्मी विलास रस कोल्ड होता है, कफ होता है, कोल्ड के लिए हम लक्ष्मी विलास रस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें नारदीय विद विजय मिल जाए तो जो काम हमारा हफ्ते में होता है वो हमारे 3 दिन में हो जाएगा। हमारी मेडिसिन भी क्विक काम करती है, मोर देन एंटीबायोटिक्स, बट वी डोंट हैव अथॉरिटी टू गेट ऑल दीज थिंग्स। देन विजया लेह, इवन देखो लेह बनाने का मतलब क्या था। अब एक यंग लड़का है या ओल्ड एज वाले हैं तो आपने उनको भी मेडिसिन देनी है जो थोड़ा टेस्ट, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टेस्ट चाहिए, तो लेह फॉर्म है। लेह मीन्स जैम की तरह, वो जैम फॉर्म में भी विजय का लेह का हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसमें हमें अच्छा वीर्य स्तंभकारी वटी, वीर्य स्तंभन वटी आती है, बट वीर्य स्तंभकारी वटी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मैंने एक बार बनाई थी अनऑफिशियली और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ये थोड़ी सी फॉर्मुलेशन जो मैंने लिखी हैं, बाकी बहुत हैं, आप काउंट करते जाइए, बहुत ज़्यादा हैं। ये स्लाइड बेसिकली मैंने पहले इसलिए डाल दी, मैंने एंड में डालना चाहता था, मैं पहले फिर भी डाल दी कि ये कुछ लोग जो सुन रहे हैं, जो भांग की हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो पता लगे कुछ लोग भांग अभी जाएंगे, थोड़ी सी तोड़ के ले आएंगे और उसको नेट पे पढ़ के शोधन करके लेना शुरू कर दें। तो उनको पहले ही मैं सचेत करना चाहता हूँ कि ओवरडोज, जो मैंने आपको बताया कि ओवरडोज की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। तो ड्राइनेस ऑफ नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड वार्म ब्रेथ। पित्त है तो वार्म ब्रेथ करेगा,
ड्राइनेस ऑफ नोज करेगा, हैवीनेस एंड हर्टिंग ऑफ विजन। आपने देखा होगा जो भांग ज़्यादा पी लेते हैं तो उनको क्या होता है, वो दो दो चार चार दिखने शुरू होते हैं। तो ये ओवरडोज, ये मैं नहीं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है और अनंत कंद ने प्रॉपर लिखा है बहुत साल पहले। देन थर्स्ट, हंगर एंड ड्रोजीनेस ऑफ आइस, तो ये भी हमने बहुत बार सुना है, इसने भांग खाई है। जब कोई इंसान मतलब जितनी रोटी खाता है उससे ज़्यादा खाना शुरू करता है, क्या होता है, भांग खा के आया क्या? तो ये हमारा एक नॉर्मल चलता है। तो ये उसका ओवरडोज का ये दिया हुआ है। देन स्टैमरिंग ऑफ स्पीच, बोलते बोलते उसका स्टैमर होना शुरू हो जाएगा। तो ये ओवरडोज है। ये आपको बड़ा ज़रूरी समझना है कि इसकी ओवरडोज होती है और ये चीज़ें हो सकती हैं। नम्बनेस ऑफ हैंड, इफेक्शन टुवर्ड्स ओन बॉडी, देन इंटरमिटेड कन्फ्यूजन एंड रीजॉइंसिंग, कभी कंफ्यूज हो जाएगा, कभी ओवरजॉय करेगा, ठीक है। देन हेलुसिनेशन, ठीक है, क्राइम, कभी रोता है तो रोता रहेगा। तो ये सब टेक्सचुअल हैं, मैंने घर से नहीं लिखा है। अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, मान लो मेरे कुछ साथी कर लेते हैं ऐसा, या हमने, अगर ये सिर्फ उसके लिए नहीं, मान लो कभी विजया हमने बनाई, मेडिसिन दे दी, पेशेंट का जो हम बल कहते हैं, जो हम उसकी ताकत कहते हैं, अगर वो कम हुआ तो कभी क्या होता है, नॉर्मल डोज भी उस पेशेंट को ओवरडोज कर सकती है। तो देन अगेन, इवन इन मेडिसिन यू मस्ट नो कि हम क्या क्या प्रोटोकॉल, वी शुड नो कि उसमें हमने क्या करना है। तो प्रोटोकॉल हमेशा 3 तरह से होता है। फर्स्ट वन विद मेडिसिन, सेकंड विद फूड, थर्ड इज विद योर विहार, मतलब विद योर एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटी उसको आप करवा सकते हैं। तो कोई भी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए आपको 3 चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए कि उस बीमारी में मेडिसिन क्या यूज़ होगी, उस बीमारी में पथ्य, आहार, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दैट, और आपको एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको करनी है। तो इसमें इन्होंने बोला गया है कि जब औषध हमने देनी है तो क्या करना है, शोधन, प्यूरिफिकेशन करना है, ठीक है, विरेचन, मतलब हम उसको आप एक तरह से समझ लीजिए मेडिकेटेड परगेशन कहते हैं कि हमें उसे परगेशन देनी है, ठीक है। देन शमन चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन देनी है, ठीक है। अमल द्रव्य, कोई अमल द्रव्य देना है तो चिंचा पानक हम देते हैं पीने के लिए, मतलब हम इमली का पानी पिला देते हैं, या अगर ज़्यादा वो बिल्कुल हुआ है तो हम उसको घी भी दे सकते हैं। देन उन्होंने आहार के लिए बोला हम खाने में क्या क्या देंगे, च्युइंग तांबुल, तो पान का पत्ता बहुत इसमें अच्छा रोल है तांबुल का। देन पानक, जैसे मैंने आपको बताया, पानक प्रिपेयर्ड विद शुगर एंड हनी, इसमें हम एक चिंचा पानक का बड़ा यूज़ करते हैं, विच इज़ आल्सो मेड फ्रॉम शुगर, हनी एंड टर्माइन। देन सूप प्रिपेयर्ड विद मूंग दाल। अब देखो जितनी भी चीज़ें वो बताइए, लाइट आहार, उसको वेरी लाइट भोजन देना है जिससे जो उसके इफेक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए, ठीक है। देन विहार, एक्टिविटी क्या करनी है, हेड बाथ विद कोल्ड वाटर, तो हेड बाथ कराओ उसका कोल्ड वाटर से, ठीक है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ शीत वीर्य हर्बल पेस्ट, तो आपने चंदन का लेप करवा दो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसका जो रस है, जो वीर्य है, वो उष्ण है, तो आपको ठंडी चीज़ें देनी है, ठीक है ना। उसको बोलो ठंडी ठंडी चीज़ें लिए, एरोमेटिक, मतलब उस पर इत्र वगैरह कुछ ठंडी चीज़ें रखो। तो ये बताया है टेक्स्ट में कि आपको ये चीज़ें करनी है। और प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो ओवरडोज हो भी जाती है तो कुछ नहीं करना है। इवन इफ़ यू डोंट हैव महातिक घृत, एनी अदर घृत, देसी घी अगर घर पे है या आपके पास मक्खन घर पे है तो आप उसको 2-3 चम्मच मक्खन पिला दीजिए, उसका वैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा। नो टाइम मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, जो मेन चीज़ें हैं उस पर हम आए नहीं हैं। अभी आते हैं, यहाँ से आप शुरू होता है केस रिपोर्ट्स। तो नाम तो मैं पेशेंट्स के नहीं लूँगा क्योंकि एथिकली इट्स नॉट वैल्यूएबल टू टेक द नेम्स ऑफ द पेशेंट, बट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसमें कैसे कैसे है। टाइप ऑफ स्टडी जो की है इंटरवेंशनल, मतलब सिंपल जो स्टडी है वो हमारी मेडिसिन से लेकर ओपीडी लेवल पे हुई है, 60 डेज़ की स्टडी है और ओरल मेडिकेशन हमने दी है। असेसमेंट क्राइटेरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को आप लोग बाद में अपने पास रख भी लेना। कभी भी आप असेस करो किसी भी अपनी ट्रीटमेंट को, किसी भी आप कभी भी कोई केस हिस्ट्री लो, कुछ भी करो, तो यू मस्ट नो द असेसमेंट क्राइटेरिया। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से बना लो, यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट, यू कैन चेक ऑन द गूगल कि क्या हमसे पहले कोई हमारे गुरु ने, हमारे किसी ने कोई ऐसा असेसमेंट क्राइटेरिया बनाया है कि जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या जिसको हम कुछ कर सकते हैं। तो ये है इसके असेसमेंट क्राइटेरियाज। तो इसमें सबसे पहले जो दिया है वो क्या दिया है, संधिशूल, दैट इज पेन इन जॉइंट्स। तो संधिशूल जो है वो अगर नो पेन होगी तो 0 ग्रेडिंग है, अगर माइल्ड पेन होगी तो 1 ग्रेडिंग है, मॉडरेट अगर होगी तो आपकी मॉडरेट है तो आपकी 2 रहेगी, ठीक है। ये क्राइटेरियाज हैं।
देन आता है आपका देन आता है स्वेलिंग इन द जॉइंट्स। तो स्वेलिंग में क्राइटेरिया, नो स्वेलिंग है तो 0 है, ज़्यादा स्वेलिंग है तो 1 है, मॉडरेट स्वेलिंग है तो क्या है 2 है, और स्वेयर स्वेलिंग है देन इट इज़ 3। तो बेसिकली असेसमेंट क्राइटेरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स स्टिफनेस इन द जॉइंट्स। जहाँ भी अर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, गोटी अर्थराइटिस होगा, रिमेटिक अर्थराइटिस होगा, तो स्टिफनेस जरूर रहेगी। तो इज इट नो स्टिफनेस, okay, 5 minutes to 2 hours, 2 hours to 8 hours, or greater than 8 hours। तो then there comes tenderness, स्पर्श असत्व, मतलब टच करने पे कैसा फील होता है। तो अगर कोई टेंडरनेस नहीं होती, अब टच कर रहे हैं पेशेंट को, कोई टेंडरनेस होती है नहीं होती है, तो देन इट इज़ 0 ग्रेडिंग। अगर सब्जेक्टिव दबाएंगे, ठीक है, आप दबा रहे हैं उसको, उस एरिया को, और पेन हो रही है तो टेंडरनेस हो रही है तो 1। अगर आप उसको दबाते हैं और उसके फेस पे ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा विंचिंग शो हो रही है, देन इट इज़ 2। एंड विंचिंग ऑफ फेस एंड विड्रॉल ऑफ द इफेक्टेड पार्ट ऑन प्रेशर, ठीक है। तो विंचिंग भी रहती है, और अगर जो इफेक्टिव पार्ट है उस पर भी प्रेशर फील होता है, देन 3rd एंड रेजिस्ट टू टच, तो टच नहीं करने देता, देन इट इज़ 4th। सो दिस इज अनदर मेलियस, आलस्य। अब लोग बोलते हैं ये तो सिम्टम नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। आज के डेट में पेशेंट का जो चीफ कंप्लेंट लेके आता है, जब भी आपके पास कभी आता है, पता क्या बोलेगा, ताकत नहीं है शरीर में जान नहीं है, बहुत ऐसे शरीर आलसी सा महसूस हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, यू मस्ट नो, बिकॉज वो उसकी नॉर्मल डे टू डे वर्किंग पे हैम्पर करता है, उस पर इफेक्ट करता है। देन अगर उसको कोई आलस्य नहीं है, देन इट्स 0। ड्यूरिंग वर्क सेटिस्फैक्ट्री विद लेट इनिशिएशन, अगर अनसेटिस्फैक्ट वर्क कर रहा है लेकिन थोड़ा सा लेट इनिशिएट करने के बाद, अगर अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क है अंडर मेंटल प्रेशर, इट टेक्स टाइम, not starting any work on his own responsibility and doing late work very slowly, 3rd। and then क्या हो रहा है, डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव, मतलब कहता है मैंने उठना ही नहीं है, मैंने कुछ करना ही नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है, देन इट इज 4th ग्रेड। देन गौरव, फीलिंग ऑफ हैवीनेस। तो बॉडी ऐसा लगता है कि हमेशा भरी, सोजिश जैसे स्वेलिंग जैसी आई है पूरी बॉडी, ऐसा लग रहा है भरी भरी है, तो उसमें भी क्राइटेरियाज दिए हैं। तो फीवर है, अगर तो रिमेटिक का पेशेंट होगा तो फीवर उसमें रहेगा, तो ये फीवर के लिए दिए हैं, क्योंकि क्राइटेरिया सबके लिए बराबर बनाए हैं। देन नम्बनेस, आप उसमें नम्बनेस, वो कहता है कि मेरे सो गए, टांग मेरी सो गई, हाथ मेरा सो गया, जान नहीं है, दैट इज नम्बनेस। सो दीज आर द नो। स्टार्ट विद दिस केस नंबर 1। सो here the first case is of a lady. She was a retired teacher, 65 years age उनकी है, और इंडियन है, रिलीजन हिंदू है, और वेरी वेल जो इकोनॉमिक स्टेटस है उनका बहुत बढ़िया है, वेरी वेल इकोनॉमिक स्टेटस है। अब हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में उनका जो मेरे पास जब वो आए पेशेंट, तो संदिग्धवाद क्या होता है, जिसे हम मॉडर्न में ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत पेन रहती है, ठीक है, उठने में प्रॉब्लम आती है, स्वेलिंग होती है, और इस पेशेंट को, इस फीमेल को हाइपरटेंशन की एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। और हाइपरटेंशन भी कैसा था कि 160 वो नॉर्मल मानती थी आफ्टर मेडिकेशन, कि 160/110 अगर है तो दैट इज़ नॉर्मल फॉर हर, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी उसका ऐसा स्टार्ट हुआ था, तो ये उसको नॉर्मल मानती है। तो और फैमिली हिस्ट्री में अभी ना उसके हस्बैंड को किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अब फिजिकल एग्जामिनेशन जब हमने की तो उसमें देखा कि स्वेलिंग जो है वो दोनों घुटनों पे है, बहुत नी जॉइंट्स पे है, ठीक है, और जो टेंडरनेस, एक दबाने पे जो पेन हो रही है और दबाने के बाद छोड़ने पे भी जो हो रही है, वो लेफ्ट नी में है। तो फिर हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए कुछ, आजकल आपको डायग्नोस्टिक कराना बड़े कंपलसरी हैं टू सेटिस्फाई द पेशेंट, सेटिस्फाई योर ओन सेल्फ, और हमें अपनी पैथी को अगर प्रूफ करना है तो। देन जो सीरम यूरिक एसिड था वो नॉर्मल था, ESR नॉर्मल था, RF फैक्टर भी नेगेटिव था, NT-CCP भी नेगेटिव था। तो विटामिन D3 लेवल था जो वो काफ़ी लो था। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया, हमने जो मेडिसिन स्टार्ट की। तो यहाँ में आपको बड़ा बेसिकली मेन फोकस जो है, डायग्नोसिस तो सभी कर लेंगे, फोकस जो है यहाँ पर वो क्या है, ट्रीटमेंट प्लान का, कि हमने ट्रीटमेंट प्लान कैसे स्टार्ट किया।
तो सबसे पहले टेंडरनेस, जो इन्फ्लामेशन और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो एक टक टक की आवाज़ आती है या जो पेन होती है, इन्फ्लामेशन रहती है, उसके लिए हमने जो चूज़ किया वो किया महायोगराज गुगुल की टेबलेट। तो टेबलेट महायोगराज गुगुल ली, 2 टेबलेट, और अनुपान क्या दिया उसके साथ, रासना सप्तक कषाय। तो रासना सप्तक कषाय को बॉईल करने के लिए बोला, उसको अनुपान में दिया, और 1 घंटा खाने से पहले। गुगुल बाद में देते हैं लोग, मेरी प्रैक्टिस में मैं गुगुल को पाउडर करके उनको बोलता हूँ 1 घंटा पहले ले खाने से, क्योंकि मैं जब कषाय के साथ देता हूँ गुगुल तो 1 आवर बिफोर मील्स देता हूँ, चाहे वो ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले हो और डिनर से 1 घंटा पहले। अब पेशेंट को साथ में स्टार्ट की मेरी, अब मैं पिछले 2019 से ही त्रिलोक्य विजयवटी यूज़ कर रहा हूँ हर पेशेंट में, क्योंकि पेशेंट हमारे पास बहुत लेट पहुँचता है, स्टेरॉइड्स खा के, मेडिसिन एनएसआईडीज खा के, एनसैड्स खा के, एंटी इन्फ्लामेटरी और बहुत कुछ खा के आता है। तो वी नीड, जो चीफ कंप्लेंट है कि पेन सबसाइड होनी चाहिए। तो आई टुडे मतलब फ्रॉम ऑलमोस्ट 2019 में त्रिलोक्य विजयवटी हर उस पेशेंट को देता हूँ जहाँ पर जो चीफ कंप्लेंट वो लेके आता है वो पेन होती है। तो स्टार्ट किया त्रिलोक्य विजयवटी, इसके साथ शीरबला कैप्सूल, शीरबला आवर्ती कैप्सूल आता है, क्योंकि वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस था, अंदर स्नेबल फ्लूइड जो कम हो रहा था, हमें थोड़ा घर्षण चिकित्सा करनी थी, तो ये दोनों चीज़ें दी। साथ में दिया एक लीवर सिरप, क्योंकि त्रिलोक्य विजयवटी अगेन थोड़ा सा पित्त बढ़ा रहता है, तो मैंने उसके लिए एक लीवर सिरप साथ में स्टार्ट किया, एमलिकोडीएस। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें एक टेबलेट स्टार्ट की मैंने, एक पेटेंट आती है कार्डोस्टेप, आयुर्वेदिक है, प्योर आयुर्वेदिक, फॉर बीपी, 2 टेबलेट एट बेड टाइम। एंड आफ्टर 1 मंथ मैंने एलोपैथिक विड्रॉ करवा दी उनकी, और अभी उनका जो बीपी है वो लगभग अब वो 140 से नीचे आना शुरू हो गया है, विदाउट एलोपैथिक मेडिसिन, ओनली ऑन दिस। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ त्रिलोक्य विजयवटी फर्स्ट स्टेज में, आप वेट मत करिए। जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं जो कर रहे हैं, यू डोंट वेट फॉर, अगर आप वेट करेंगे उसके पीछे 2 रीजंस रहेंगे, या तो आपको शक होगा त्रिलोक्य विजयवटी पे, या आपको भांग से डर लगता होगा। आपको जब भी कोई भांग की मेडिसिन देनी है, ये लेके चलिए कि ये इफेक्ट बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी, बिकॉज इसका ये योगवाही है, ये तीक्ष्ण है, ये लघु है, ये आपकी जो बाकी मेडिसिन जिससे आप दे रहे हो ये उसका भी इफेक्ट बढ़ाएगी। तो ऑलवेज गो विद दिस एज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो फॉलोअप में मैंने क्या किया, मैंने इनका जो महायोगराज गुगलू था, ये 1 मंथ मैंने उनको फर्स्ट इनिशियल ट्रीटमेंट चलाई। सेकंड ट्रीटमेंट चली, आफ्टर 1 मंथ महायोगराज गुगलू सिंगल टेबलेट हो गई राष्ट्र सप्तक आदि कषाय के साथ। तो त्रिलोक्य विजय मैंने कंटिन्यू रखी, उसको मैंने बंद नहीं किया, और एम्लिक्योर भी कंटिन्यू रही। अच्छा, 1 मंथ के बाद क्या हुआ और 2 मंथ्स के बाद क्या हुआ? 1 मंथ के बाद पेशेंट का चेहरे पे एक अच्छा ग्लो था, पेशेंट खुश था कि मुझे रिलीफ मिल रहा है। 15 डेज के बाद पेशेंट ने बोला कि मुझे रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि मैं त्रिलोक्य विजयवटी 15 डेज के लिए बोलता हूँ पहले, उसके बाद मैं इंक्रीज या रेज करने का सोचता हूँ। तो वो पेशेंट बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे में अब जान आ रही है, थोड़ा सा होश आ रही है। तो मैंने जब 1 मंथ अगेन इसको कंटिन्यू किया त्रिलोक्य विजयवटी को, तो अभी पेशेंट की ऑलमोस्ट शी इज मोर देन 99% क्योर्ड, और अभी भी SOS एक त्रिलोक्य विजयवटी बेड टाइम उनको कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, विद कार्डियो स्टेप। तो यहाँ पर जो असेसमेंट क्राइटेरिया थे, जो संधि शूल था वो 3rd ग्रेडिंग पे था, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था। और आफ्टर दिस ट्रीटमेंट फॉर 2 मंथ्स, ये 2 मंथ्स के बाद की बता रहा हूँ, 2 मंथ्स के बाद जो संधि शूल था वो टोटल खत्म था, संधि का जो शोथ था वो भी टोटल खत्म था, संधि ग्रह था वो भी टोटल खत्म था। स्पर्श असर था, जो आपको टच करने पे जो लग रहा था उसमें अभी स्लाइड सा उसमें उनको रिलीफ चाहिए। और बेसिकली पेशेंट की एज भी ज़्यादा थी, 65 एज है, तो वी नीड दैट, बात शामक हमें चाहिए। गौरव में आलस में भी अभी उनको आलस थोड़ा बहुत आ रहा था, ठीक है। और शून्यता अंगम जो वो नमनेस कह रहे थे वो भी उनको लगभग थोड़ी बहुत थी। तो लेकिन अब देखिए 2 मंथ्स की ट्रीटमेंट में कितने सारे क्राइटेरिया जो हैं वो नॉर्मल हो गए। एंड इससे पहले मैं यही ट्रीटमेंट 4-4 महीने चलाता था, तब जाके मुझे ये क्राइटेरिया मिलते थे। ऐसा नहीं कहूँगा मुझे उससे नहीं मिलते थे, सेम ट्रीटमेंट शेड्यूल में मिलते थे, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स, बट विद द हेल्प ऑफ त्रिलोक्य विजयवटी और एनी अदर, हम अभी और भी बताऊंगा, सिर्फ त्रिलोक्य विजयवटी नहीं है, बहुत सी है, जब आपको कुछ काम नहीं करता फिर और भी आती है। तो त्रिलोक्य विजयवटी से क्या हुआ, मुझे 2 मंथ्स में ही वो जो 4 मंथ्स 5 मंथ्स में जो मुझे इफेक्ट्स मिलते थे वो 2 मंथ्स में मिलना स्टार्ट हो गए। तो ये केस फर्स्ट था, बिल्कुल सिंपल। देन देयर इज अनदर केस, अनदर फीमेल 62 ईयर्स ऑफ एज, हाउसवाइफ, ठीक है, हाउसवाइफ है लेकिन वेरी वेल ऑफ फैमिली से, ठीक है, इंडियन थी,
इंडियन ही है, हिंदू है और वेरी गुड, वेरी 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 गुड वेल ऑफ फैमिली से है, ठीक है। तो अब इनमें जो था, इनका क्या था, इनको हमने रक्तगत वात। अब रक्तगत वात क्या है? सॉरी, रक्तगत वात दैट इज गouty आर्थराइटिस, यूरिक एसिड। तो इस पेशेंट को एक बड़ी देर से यूरिक एसिड की शिकायत काफ़ी टाइम से रह रही थी। तो बहुत सी मेडिसिन, बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बाद भी अगेन वो रेस कर रहा था। तो फिर किसी ने उनको बोला कि आप आयुर्वेद में जाइए, क्योंकि मे बी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो फिर वो हमारे पास आए, काफ़ी लेट आए। तो अब यहाँ पर हमने जो एग्जामिनेशन की वो वही स्वेलिंग, एंकल में बहुत ज़्यादा पेन थी, बहुत सेवेयर, टच करने पे वो चिल्लाते थे, ठीक है। राइट नी जॉइंट पे पेन थी, टेंडरनेस, मतलब आप पाँव वो नीचे रख नहीं पा रहे थे, पाँव रखते थे तो बहुत पेन होती थी, ठीक है। और मूवमेंट बहुत थी, टो जो उनका था वो स्वेल हो गया था। जब उन्होंने इनके टेस्ट किए, ये मेडिसिन खाने के बाद है, एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बाद जब उन्होंने 10 दिन के लिए छोड़ी, उसके बाद क्या, तो सीरम यूरिक एसिड जो था 7.8 था। ESR बहुत ज़्यादा रेज नहीं था, मे बी एंटीबायोटिक्स उन्होंने चलाई होंगी या कुछ किया होगा, तो 35 था। RA फैक्टर नेगेटिव था, एंटी-CCP नेगेटिव था, एंड विटामिन डी अगेन लो था। अब यहाँ पर नोट करिए, जो मेडिसिन स्टार्ट की मैंने, तो यहाँ पर जो क्लासिकल आयुर्वेदिक जो मेडिसिन स्टार्ट की वो गोक्षरादि गोगलू 2 टैबलेट्स विद वरुण आदि कषाय। तो वरुण आदि कषाय स्टार्ट किया, गोक्षरादि गोगलू स्टार्ट की। अगेन सेकंड जो टेबलेट स्टार्ट की, त्रिलोक्य विजयवटी आफ्टर मील्स। जो पहली दी है वो बिफोर मील्स है, त्रिलोक्य विजयवटी 1 टैबलेट प्लस शोथारी मंडूर, बिकॉज देर वॉज स्वेलिंग, देर वॉज इन्फ्लेमेशन, आई हैड टू गो फॉर शोथारी मंडूर। तो शोथारी मंडूर दिया, और दिया किसके साथ, अगेन क्लासिकल प्रिपरेशन, पुनर्नवासव के साथ 3 चम्मच। और एक सिरप मैंने निमीलिया, एक सिरप, एक कंपनी का सिरप आता है निमीलिया, बेसिकली इट्स अ ब्लड प्यूरिफायर, लेकिन अगर ये रक्तगत बात है तो यू मस्ट नीड एनीथिंग विच कंटेन्स आइदर मंजिस्ट और नीम। और मोस्टली जब यूरिक एसिड का पेशेंट आता है, देन नीम शुड बी योर ड्रग ऑफ चॉइस, बिकॉज नीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रक्तगत वात को क्लियर करने के लिए। तो ये जो इनिशियल ट्रीटमेंट चली 1 मंथ के लिए, वो ये थी। और इसमें के बीच में एक आप देखोगे, हाँ, इस पेशेंट को हाइपरटेंशन भी था, ड्यू टू अगेन दैट यूरिक एसिड भी हो सकता है, तो हाइपरटेंशन भी था। और एक मैंने इनको बॉडी को अल्कली करने के लिए, मेरा जो कंसेप्ट है यूरिक एसिड में या रक्तगत वात में, कि हमारी बॉडी जो है एसिडिक हो जाती है, तो हमें क्षार देना है उसे, उसकी बॉडी को एसिड से थोड़ा न्यूट्रल की तरफ लाने में। तो यहाँ पर एक यूराल एल के करके एक सेशे आता है, वो वीकली डेली एक सेशे मैंने उनको दिया था, उनको बोला था डेली एक सेशे लेना है आपने 15 डेज के लिए, फिर स्टॉप कर देना है, तो उससे बॉडी आपकी अल्कली होती जाएगी। देन आफ्टर 1 मंथ पेशेंट बहुत रिलीफ था, पाँव रखा जा रहा था, पाँव में स्वेलिंग ना के बराबर थी, ठीक है। तो उसके बाद अगेन ट्रीटमेंट सेम चला। ट्रीटमेंट को जब आपको रिजल्ट मिल रहा है, यू डोंट चेंज द ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट चला 1 महीने के बाद। तो 2 मंथ्स के बाद पेशेंट का जो यूरिक एसिड का लेवल था वो 5.5 आ गया था, ठीक है। 5.5 यूरिक एसिड का लेवल आया, पेशेंट को रिलीफ था। स्टिल पुनर्नवासव, त्रिलोक्य विजयवटी और कार्डियोस्टेप उनका कंटिन्यू चल रहा है अभी भी, ठीक है। पुनर्नवासव कंटिन्यू चल रहा है, त्रिलोक्य विजयवटी 1 टैबलेट एट बेड टाइम चल रहा है, और कार्डियोस्टेप को मैंने मॉर्निंग में कर दिया, ठीक है। ये आफ्टर 2 मंथ्स के बाद। अब आप बोलोगे कि आप सर हर पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही है तो केस स्टडीज नहीं होती। बेसिकली केस स्टडीज वही होती हैं कि आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत लेट पेशेंट आते हैं। देन दिस इज आउटकम। संधि शूल जो था बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपको बोला कि जब वो आए थे मेरे पास तो पाँव नहीं रखा जा रहा था, वो 4 था और वो 1 रह गया, ठीक है। जो स्वेलिंग थी वो 0 हो गई। संधि ग्रह जो था वो बिल्कुल स्लाइड सा है, ठीक है। स्पर्श करने पे, मतलब बहुत ज़ोर से जब हम दबा रहे थे, तो फिर जाके स्लाइड उनको पेन थोड़ा सा महसूस हो रहा था। अब क्या है कि ओल्ड एज में अगेन ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, अब यूरिक एसिड के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस भी होगा, वो भी मेन कारण हो सकता है। आलस्य भी बहुत कम हुआ था, हैवीनेस इन बॉडी कम हुआ था, ज्वर नहीं था, ठीक है। शून्य अंगम भी कम हो गया था। देन कम्स थर्ड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को मैं मैंने मिड में रखा है, एक ये थर्ड एंड 1 इज 6th। ये 2 बड़े इंटरेस्टिंग केस हैं। ये पेशेंट मेरे पास आया था ड्यूरिंग पीक कोविड, मेरे क्लिनिक में नहीं आया था। वन ऑफ हर रिलेटिव, शी वॉज माई स्टूडेंट सम ईयर्स अगो, वो BMS की स्टूडेंट थी मेरी। तो मुझे फ़ोन आया कि सर मेरी, शी इज़ अ फीमेल, वेरी वेरी वेल ऑफ फैमिली, शी इज़ लेक्चरर बाय प्रोफेशन, वेरी यंग, 33 ईयर्स एज। तो कॉल आया सर, एंड शी इज़ मुस्लिम बाय रिलीजन। तो इन कोविड क्या हुआ, कोविड में हर लोगों ने घर पे बहुत कुछ बनाया, फर्स्ट कोविड में बहुत
खाया घर का सब कुछ, मतलब ओरियन मुस्लिम तो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। तो कॉल आया सर मेरी सिस्टर को एकदम से शूटिंग पेन हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, उनको स्टिफनेस, मॉर्निंग में उठा नहीं जा रहा, 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है। अब कोविड में क्या था कि आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्स्ट इंस्टेंस में, फर्स्ट 6 मंथ्स में हमारे यहाँ पर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को प्रैक्टिस अलाउड नहीं थी। तो अब मैंने कॉल किया और मैं सिंपल उनको बोला कि थोड़ा सा नमक लो, रेत लो, एक पोटली बनाओ और इनको मसाज करो, और साथ में अगर अब कोई मेडिसिन नहीं है घर पे, अगर आपके पास शुंठी, जिंजर का पाउडर, शुंठी जिसे हम कहते हैं, सौंठ पाउडर, उसको आप लो और आप पानी में उसको बॉईल करो। तो आप शुंठी सादित जल बनाओ और वो लो, और कोई इसबगोल या कुछ भी एनी आपके पास लैक्सेटिव है तो उसको वो लो। तो आफ्टर टेकिंग दिस शुंठी जल एंड बालूका स्वेद फॉर 3-4 डेज, तो पेशेंट को बहुत रिलीफ मिला और विरेचन के साथ। लेकिन अब जब कोविड अगेन वो दोबारा शुरू हो गया खाना पीने में, तो बड़ी डिफॉर्मिलिटीज़ अभी स्टार्ट होना शुरू हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई नहीं थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी किचन, अगर आपको आयुर्वेद पता होगा अगर आपको, तो यू कैन डू विदाउट मेडिसिन इवन कि आप इमीडिएट रिलीफ ला सकते हैं। तो ये पेशेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये मेरे पास आए फिर आफ्टर कोविड, तो बोले कि सर हमने एलोपैथिक में नहीं जाना है, क्योंकि हमने तब उस टाइम पे जब आपको कॉल किया था तब तक हमने 1 हफ्ते की मेडिसिन खा चुके थे और हमें कोई रिलीफ नहीं हो रहा था, और आपने कोई मेडिसिन नहीं दी, और सिर्फ एक लूज मोशन लगवाए, जो हम जिसे हम विरेचन कहते हैं नॉर्मल, मतलब घर पे, और शुंठी से ही आपने हमें इतना रिलीफ दिया, तो वी नीड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो अब हमने जब उनकी स्टार्ट की इन्वेस्टिगेशन, तो मॉर्निंग स्टिफनेस उसमें थी, टेंडरनेस बहुत ज़्यादा थी, लिमिटेशन ऑफ मोशन थी। तो अब क्या है, जब हमने इनका टेस्ट डायग्नोस्टिक्स करवाए तो उसमें आया ESR जो था 95 था, रेज था, काफ़ी रेज था, RA फैक्टर पॉजिटिव था, NTCCP पॉजिटिव था, CRP रेज था, ANA रेज था, विटामिन D3 लो था। वो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि वो लो ही रहता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ट्रीटमेंट शेड्यूल जो हमने स्टार्ट किया, वो क्लासिकल आयुर्वेद में श्रीनाथ गुगलू से स्टार्ट किया। ठीक है, श्रीनाथ गुगलू से स्टार्ट किया, तो उसमें रासना एरंडादी कषायम डाला। अब कोई सोचेगा इनसे क्या होता है, तो देखिए त्रिलोक्य विजयावटी मैंने उस टाइम पे भी दी थी ड्यूरिंग कोविड के बाद, जब वो मेरे पास आए थे। मेरे पास तब एक दूसरी कंपनी की, अनंता की नहीं, किसी और की आती थी, तो मैंने वो भी दी, और सुबह और शाम 2 टाइम मैंने उसकी स्टार्ट की, और आम बातारी रस के साथ। और ESR रेस था तो मैं सेप्टलिन को बड़ा प्रेफर करता हूँ ड्यूरिंग ESR, तो टेबलेट सेप्टलिन स्टार्ट की, और अमृता रिस्ट के साथ। तो पेशेंट विद इन 15-18 डेज के बाद पेशेंट को इतना रिलीफ मिला कि यू इवन डोंट नो, कि पेशेंट बोला कि सर मेरी तो पेन चलेगी। ठीक है, ये अब ये जो ट्रीटमेंट शेड्यूल है, अगेन सेम पेशेंट मेरे पास आया फिर वही 1.5 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद, लास्ट ईयर मेरे पास पेशेंट आया। तब मेरे पास एक नया वंडर ड्रग आ गया था जो अनंता वालों ने मुझे पहुंचा दिया, वो था पेन रिलीफ कैप्सूल। उससे पहले तक मैं त्रिलोक्य विजयवटी तक ही सीमित था। तो अब क्या हुआ, पेशेंट दोबारा आया, तो अब क्या था, सिवियरिटी बढ़ गई थी। वो क्यों बढ़ गई, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाया। ठीक है, मेडिसिन बंद कर दी, 15 दिन में रिलीफ मिल गया, मेडिसिन बंद कर दी। तो जब अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास आए, तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने उनको स्टार्ट किया अगेन फ्रॉम जीरो, सेम श्रीनाथ गुगलू, त्रिलोक्य विजयवटी, सेप्टलिन। और अब एक चीज़ देखिए, ओवरडोज, लोग सोचेंगे यहाँ मैंने ओवरडोज दे दी, मैंने उनको त्रिलोक्य विजयवटी सुबह शाम दी है, साथ में पेन रिलीफ, बिकॉज शी वॉज यंग लेडी, 33 ईयर्स ऑफ एज, उसकी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है तो पेशेंट नीड्स कि मेरी रिस्ट्रिक्शन ठीक हो जाए, मेरे को पेन से आराम मिले। तो मैंने पेन रिलीफ, इनका कैप्सूल आता है अनंता का, 25 mg का उसमें रहता है, बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है। वो बेड टाइम सिंगल डोज, ओडी डोज में वो बेड टाइम दिया। साथ में पंचकोल, जो शुंठी से काम किया था, वो पंचकोल सादित जल, पंचकोल का फांट एक तरह से बना के पेशेंट को दिया, और बोला कि आप इसको कंटिन्यू करो, और नित्य विरेचन वीकली वंस विद गंधर्वस्तादी कैप्सूल। तो वीकली वंस उनको बोला कि आप मॉर्निंग में उठिए संडेज को, सुबह 6 बजे 2 कैप्सूल आप ले लीजिए, आपको 3-4 मोशंस आएंगे और आपका नित्य विरेचन होता जाएगा। और फॉलोअप ये 1 महीना, और मैंने ये लगातार ये मेडिसिन उनको 3 से 4 महीने खिलाई है, 3 से 4 महीने। तो अगेन श्रीनाथ गुगलू सेम दिया। फिर क्या हुआ, अब मैंने आम बातारी रस को बंद कर दिया, र्यूमारतन गोल्ड स्टार्ट किया, एक पेटेंट आता है र्यूमारतन गोल्ड स्टार्ट किया, पेन रिलीफ स्टार्ट की, क्योंकि अब क्या था कि पेन उनको थोड़ा सा कम हो रहा था, और अब मैं थोड़ा उनको त्रिलोक्य से हटा के सिर्फ सिंगल पेन रिलीफ पर रखना चाहता था, तो कैप्सूल पेन रिलीफ स्टार्ट किया। तो अभी टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लगभग 1-1.5 साल हो गया है, 1 साल हो गया है, अभी वो नॉर्मल है,
they don't need anything for this. तो रिजल्ट देखिए कितना ज़बरदस्त मिला है। संधि शूल में 4 में से 1 ग्रेडिंग हो गई, 4 ग्रेडिंग थी 1 हो गई। संधि शोथ में 3 में से 1 हो गई। संधि ग्रह में 2 में से 1 हो गई। ठीक है, गौरवता में 4 में से 0। ज्वर उनको अब उनको कोई ज्वर नहीं आता। अमृता रिश ने ही ज्वर खत्म कर दिया। ठीक है, तो इतना अच्छा रिजल्ट अगर आयुर्वेद में आपको विद द हेल्प ऑफ हेम्प मिल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ हेम्प से मिल रहा है, विद द हेल्प ऑफ हेम्प मिल रहा है। आप यू हैव टू गो विद क्लासिकल आयुर्वेद एंड अगेन त्रिलोक्य विजयवटी इज ए क्लासिकल मेडिसिन। पेन रिलीफ, हाँ, अगर आपके पास देखो डोजेज बढ़ानी है, वो सतयुग का या वो त्रेता युग का जो डोजेज थी वो आज की डेट में नहीं चलती, तो हमें उसको डोज बढ़ानी है, तो वी मस्ट नो द एज ऑफ द पेशेंट। एंड दिस इज द फोर्थ, दिस इज अगेन सिंपल हाउसवाइफ थी, वेल ऑफ फैमिली। अगेन ये केस है जो रिमेटिक अर्थराइटिस का है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि सेम लगभग ट्रीटमेंट शेड्यूल था इस पेशेंट को, लेकिन पेन ज़्यादा थी तो मैंने रिमोरेटन ही ज़्यादा स्टार्ट किया था और फर्स्ट इंस्टेंस में ही मैंने रिमोरेटन गोल्ड स्टार्ट कर दिया था। और फर्स्ट इंस्टेंस में मैंने इस पेशेंट को विजयवटी 75, क्योंकि ये लेडी ऑलरेडी स्टेरॉइड कुछ खा के आई थी मेरे पास, ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन खा के आई थी, तो आई हैव टू गो विद कैप्सूल विजय 75 इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और 1 मंथ मैंने उनको खिलाई है वो बेड टाइम पे। और उसके बाद रिमोरेटन गोल्ड, और फिर मैं आ गया अपना टैबलेट पेन रिलीफ में। ठीक है, और त्रिलोक्य विजयवटी, मतलब त्रिलोक्य विजयवटी और पेन रिलीफ तो मैं साथ में देता ही देता हूँ। और जब बहुत ज़्यादा हालत खराब हो देन आई विल गो फॉर विजय 75। विजय 75 मतलब मेरा लास्ट, जिसे हम कहते हैं ना, हमारा लास्ट हथियार है वो विजय 75 है। तो आप रिजल्ट देखिए 3-4 महीने के बाद। हाँ, सिर्फ इससे नहीं, मैं ये भी बता देता हूँ, साथ में बालू का स्वेद कंटिन्यू चलता रहा और मात्रा बस्ती भी सेंधावादी तेल हमने इसकी स्टार्ट की थी। ठीक है, ये केस रिपोर्ट जो है 5 है, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ये अभी रिसेंट केस है मेरा, बहुत रिसेंट। मेरा लास्ट मंथ एक वेबिनार हुआ था, उसी दिन वो पेशेंट मेरे पास आया था लास्ट अपना दिखाने। तो ही इज़ अ ब्रांच मैनेजर इन अ बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, तो बड़े वेल ऑफ हैं, सब कुछ अच्छा है। तो इनको, लेकिन जो इनकी पास्ट हिस्ट्री में बाइपोलर डिजीज है, इनको थोड़ा सा बाइपोलर डिजीज थी जिसकी मेडिसिन चल रही थी, और वेरिकोज वेन था। अब मेरे पास वो आए थे ओए के लिए, संदिग्ध बात, जो मतलब वो क्या है कि चेयर पे बैठते थे ऑफिस की, जब उठते थे तो उठा नहीं जाता था, जो इसके क्लासिकल सिम्टम है कि अब 3-4 घंटे वो ऑफिस की चेयर में बैठेंगे, जब उन्होंने उठना होता था उठा नहीं जाता था। तो वो मेरे पास, उनको किसी ने लाया कि आप जाइए वहाँ पर ट्रीट हो जाएंगे। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा, तो मैंने हिस्ट्री वगैरह ली तो पता लगा वेरिकोस भी है और बाइपोलर भी है। तो मैंने, अब मेरे पास ओए के लिए आए थे तो आई गो विद अगेन ओए। तो ओए की जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, ओए की जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, तो हमने जो लेबोरेटरी टेस्ट वो करवाए वो नॉर्मल थे सारे। अब यहाँ इस पेशेंट को ट्रीटमेंट देखो, मैंने एक चीज़ अभी ये मैंने वही बोला ना, न्यू पेशेंट है और मैं बहुत अभी रिसेंट है, 3-4 महीने से ही, 2-3 महीने से ही चल रहा है। तो इसमें मैंने हेम्प और ऐड कर दिया, अब मैं हेम्प और ऐड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, महायोगराज गुगलू, रासना सप्तक कषाय, त्रिलोक्य विजयवटी अगेन, एंड स्मृति सागर रस, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रस इज नवजीवन रस। नवजीवन रस दिया इनको, स्मृति सागर रस दिया, त्रिलोक्य विजयवटी दी, तीनों एक साथ दी। किसके साथ? सरस्वती रिष्ट के साथ। और पेन रिलीफ कैप्सूल एक रात को सोते हुए, क्योंकि बैंक मैनेजर हैं, उनको रोज बैंक में जाना है, 5 घंटे बैठना है, तो मैं नहीं चाहता कि उनको पेन मतलब मेरी मेडिसिन खाते रहे फिर भी पेन हो। तो फ्रॉम द डे 1 मैंने उनको देना स्टार्ट कर दी। और हेम्प सीड पाउडर दिया मैंने। हेम्प सीड पाउडर आता है, कंपनी बनाती है, आई डोंट डिस्क्लोज द कंपनी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एक कंपनी का आता है, मैंने वो फॉर जनरल डेबिलिटी के लिए उनको वो स्टार्ट किया। तो 1 महीना ये खिलाया। 1 महीने के बाद जब पेशेंट मेरे पास आया तो वो बोले कि सर मेरी दर्दों को तो फर्क पड़ा ही पड़ा है, मैं जो हमेशा सोया रहता था, मैं जो हमेशा मेरा मूड चेंज रहता था ड्यू टू बाइपोलर, मेरा उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट शो हो रहा है। अब मैं इरिटेबल नहीं होता, इरिटेट नहीं होता, अब मेरा मूड स्विंग्स नहीं होते। उसकी जो सन था उसका पेशेंट का, वो बोला कि पापा बहुत अच्छा खुश फील करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, वॉक पे जाते हैं, बड़ा अच्छा सा फील करते हैं। और आफ्टर 2 मंथ्स जब वो आया मेरे पास तो बोला डॉक्टर साहब ये तो एक मिरेकल और हो गया कि वेरिकोस वेन नहीं दिख रही, बट this is a something very difficult for me to understand even कि वेरिकोस कौन से। फिर बाद में मैंने सोचा कि हाँ क्यों नहीं हो सकता, आपको उसने प्रेशर रिलीज किया बॉडी में, आपकी बॉडी का प्रेशर रिलीज हुआ, वेन्स को रिलैक्सेशन मिली, एंड वेरिकोस गोज ऑफ। मैं ये नहीं कहूँगा इट मस्ट बी अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेरिकोस, बट इट हैज गिवन रिजल्ट टू मी इन वेरिकोस। एंड माय लास्ट केस, आई थिंक टाइम इज flying very fast. I will come to my last case. This is a very typical case, और ये 53 एज पेशेंट है, ये अभी भी चल रहा है मेरे पास, बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है। फिर भी मैंने क्यों बताना इसको ज़रूरी समझा
कि ऐसा पेशेंट आपके पास वंस इन ए लाइफ आता है। इट्स अ क्लासिकल पेशेंट ऑफ उरुस्तम। इसने आयुर्वेद, एलोपैथिक, स्टेरॉइड, झोला छाप, जो भी जितने भी वो सब कुछ इसने ट्राई कर लिया 6-7 साल में, और उरुस्तम का पेशेंट था। अभी इसको उठा के लाना पड़ता है चेयर के साथ, क्योंकि ये अपने जो है चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। अपर लिम्ब इज ओके, हाथ आपका अच्छे से पकड़ेगा, पावर ग्रिप सब कुछ है, बट लोअर लिम्ब इट्स नॉट वर्किंग। उरुस्तम अब नॉन हिस्ट्री अस्थमा की थी, इसके लिए भी इसने स्टेरॉइड खाया था, तो इसके लिए भी इसने स्टेरॉइड खाया था। तो अब मेरे पास जब आया 5-6 साल के बाद, तो मैंने उसके जब देखा तो बहुत सा, मतलब जो झोला छाप ने इसको बहुत स्टेरॉइड खिलाया था, यहाँ कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने भी बहुत स्टेरॉइड खिलाया था। तो अब पेशेंट आया, वी कांट से कि वी कांट नॉट ट्रीट यू और वी कांट सेव यू, बट वी हैव टू। और मैंने उसको बोला था इट विल टेक टाइम और मे बी इट विल नॉट हील फॉर एवर, बिकॉज उरुस्तम बहुत क्लासिकल केस होता है, उरुस्तम आपको नहीं मिलता है। तो मैं एक बार आपको बेसिकली मॉडर्न में इसका जो कोरिलेशन बोला गया, मेरी समझ से तो थोड़ा सा बाहर है, लेकिन मॉडर्न में 3-4 चीज़ों से कोरिलेशन है। तो इसमें जो मोस्ट ऑथेंटिकेटेड लगता है वो लगता है, ठीक है, एरोटोइलियक ओक्लूजन कहते हैं, कि उसमें जो हमारे लोअर लिम्स हैं वो काम नहीं करते, उसमें दर्द होती है, स्टिफनेस हो जाती है। तो ये सिम्टम्स जो आपको, ऐसे सिम्टम्स अगर आपके पास आए तो आप एक बार देख लीजिएगा प्लीज। एक्सेसिव फटीग ऑफ काफ मसल्स एंड थाइज, पेन इन फीट ऑन स्टेपिंग ऑन ग्राउंड, inability to stand, lack of muscle strength in lower limbs, unable to move lower limbs due to feeling of fracture। उसको फील होगा कि उसको फ्रैक्चर है, मतलब उसके नीचे टांगे नहीं है, और होता है। मैं भी, हमने भी बुक्स में पढ़ा था, रुस्तम का पेशेंट देखा नहीं था। जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मैं मुझे काफ़ी टाइम लगा डायग्नोज करने में, देखने में, लेकिन आफ्टर ऑल जब उसकी पुरानी हिस्ट्री मैंने पूरी उसकी पूछी जो स्टार्टिंग से, देन क्लासिकली इट वाज अ क्लासिकल पेशेंट ऑफ उरुस्तम। अब सीरम यूरिक एसिड नॉर्मल था, ESR रेज थे, 35 थे, बाकी सब कुछ उसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया थे लगभग सारे नॉर्मल थे। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया डायरेक्ट फ्रॉम डे 1। आज उसको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ढाई महीने हो गए इस पेशेंट को मेरे पास, 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए शायद। तो विष्टुंडक वटी स्टार्ट की, अग्नितुंडी वटी, क्योंकि यहाँ पर वात और कफ, हमें कफ को आवरण हटाना है। उरुस्तम में अगर लोग उरुस्तम को समझेंगे तो उरुस्तम वात व्याधि है जिसमें पंचकर्म निषिद्ध है, यू कांट डू पंचकर्म, और उसके साथ किया था एक डॉक्टर ने, और आफ्टर पंचकर्म उसकी पेशेंट की ज़्यादा हालत खराब होगी। तो इन उरुस्तम यू डोंट हैव टू गो फॉर पंचकर्म, बिकॉज वो उसमें नहीं दे सकते। तो इसमें आपको कफ का जो अवरोध है, जो संघ है, उसको तोड़ना है। तो उसके लिए मैंने बहुत तीक्ष्ण मेडिसिन स्टार्ट की थी, विष्टुंडक वटी, अग्नितुंडी वटी, रासना सप्तक कषाय के साथ, त्रिलोक्या विजयावटी, एक सुबह नवजीवन रस के साथ और एक शाम को। और पीने के लिए क्या दिया है, मृत संजीवनी सुरा। बहुत मृत संजीवनी कफ को काटती है, बहुत उष्ण होती है। उसमें मैंने जितनी चिकित्सा की सारी उष्ण, मतलब मेद को काटने वाली, तो और साथ में हेम का स्टेट का पाउडर, और फ्रॉम डे 1 त्रिलोक्या विजयावटी के साथ साथ ही विजय 75 भी स्टार्ट की। पेन रिलीफ नहीं डाला इसमें इसमें डायरेक्ट मैंने विजय 75 स्टार्ट की। 1 मंथ के बाद अगेन मुझे लगभग यही चलाना पड़ा, लेकिन अब मैंने क्या किया, पेन रिलीफ को 1 मंथ के बाद विड्रॉ किया, उसको विजय 75 को, और पेन रिलीफ पे आया। अभी भी पेशेंट बहुत अच्छा, आपको बोलूँगा कि इज़ वेरी ओके, नहीं बहुत अच्छा उसका स्टेटस नहीं है स्टिल। अभी क्या है कि वो बोलता है कि मैं कुछ कोशिश करता हूँ उठने की, तो उठ पाता हूँ, सो पाता हूँ। सोने में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत जो पहले ज़्यादा होती थी वो कम है, और थोड़ा सा मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मैंने वही बोला था कि आपको पेशेंट को थोड़ा अच्छा फील करवाना है, अगर आपको पेशेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस देना है, तो यू हैव टू गो विद एनी विजया प्रोडक्ट। और मैं डायरेक्ट विजया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यूज़ करता ही हूँ, मैंने प्रोटीन पाउडर भी इसमें डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ डॉक्टर, मैं बोलूँगा मैंने बिल्कुल क्लियर उसको ठीक कर दिया। यहाँ ग्रेडिंग देख लीजिए, 2.5 महीने में भी, 2 महीने के बाद भी ग्रेडिंग में कोई इतना अच्छा फर्क नहीं है। संधि शूल वहीं का वहीं है, ठीक है। संधि शोध जो है वो 3 में से 2 हुआ है, स्पर्श जो 4 में से 3 हुआ है, ठीक है। जो आलस था अभी भी है, 4 में से 2 है। बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ विजया, या हमने क्या किया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसमें लाया। 2.5 मंथ्स की ट्रीटमेंट में उसने थोड़ा बहुत उसको उम्मीद जागी है कि शायद मैं ठीक हो सकता हूँ। और हमें भी पता है कि इट्स नेक्स्ट टू, मतलब वेरी वेरी टफ, क्योंकि 1-1.5 साल से ज़्यादा पुराना जब उरुस्तम हो जाता है तो वो एक तरह से असाध्य, या उसको यापे रोग कहा गया है। और अब यापे भी वो तब होता जब स्टेरॉइड नहीं खाए होते। और मेरे पास वो जब रिसेंट अभी आया था, तो वो लगातार 7 महीने से स्टेरॉइड TID डोज में ले रहा है, एक झोला शॉप डॉक्टर आयुर्वेदिक
के नाम पे झोला शॉप है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, आयुर्वेद पे सिर्फ अपना नाम लिखता है, डिग्री एमडी पता नहीं कहाँ से लिखता है। विद 7 मंथ से वो, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन भी है उसकी, 7 मंथ से उसको वो स्टेरॉइड खिला रहा है, खोल के दे रहा है, सुबह दोपहर शाम, और 3 टाइम। अगर आप 7 मंथ में स्टेरॉइड खा रहे हो और आप चाहते हो कि मैं सिर्फ त्रिलोक्य विजयवर्टी से या आयुर्वेद से आपको मैं ट्रीट कर दूं, इट्स नॉट पॉसिबल, बट येस वी कैन गिव होप। एंड आई विल टेल यू दैट एवरी पर्सन जो भी सुन रहा है, जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करता है या जो आयुर्वेद को प्रेफर करता है, प्लीज़ अगर आपको कोई डॉक्टर विजया से बनी, हेम से बड़ी मेडिसिन देता है तो उसको खुशी से अमृत समझ के, प्रसाद समझ के, अपना अगर कोई मुस्लिम है तो उसको एक सुन्नत समझ के आप उसको यूज़ करिए, उसको एज ए मेडिसिन लीजिए, यू विल फाइंड द डिफरेंस। उसमें कोई एडिक्शन नहीं मिलेगी आपको, कोई आपको उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा। और डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट है, यू प्लीज़ make steps to apply this Vijaya medicines in your practice. So thank you Vikram ji, and I think I have taken so much time, I have bored all my audience. मुझे लगता है मैंने ऑडियंस को बहुत बोर किया है, बहुत पकाऊ लेक्चर था। तो thank you for bearing me, thank you for with me or having me on your platform. And अगर कोई गलती हो गई या कुछ गलत बोल दिया तो I am still learning Ayurveda, I am just a small student of Ayurveda. So अगर हो गई तो माफ़ करना। और थैंक यू विक्रम जी फॉर एंड थैंक यू इंडियन वैद्यास फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आई थिंक जो आज का सेशन रहा है वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रहा है और बिल्कुल भी लंबा नहीं रहा है, बल्कि आपने जो केस स्टडी शेयर करी और जो आपने नॉलेज दी है भांग के बारे में और अपने हेम्प के बारे में अंदर, ये जितनी बारी हम सुनते रहते हैं और जितने डॉक्टर्स इनको सुनेंगे उतना ही फायदा होगा आगे जाके। दूसरा, मैंने 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग नोट करी हैं जो आपने बोला और बहुत बिल्कुल ठीक बात बोली है। पहली बारी मेरे दिमाग के अंदर ये पर्सपेक्टिव थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि जब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर इस मेडिसिन को यूज करना चाहता है तो उसको किस चीज के लिए, क्या चीज होती है जो वो डॉक्टर को ये मेडिसिन यूज करने से रोक रही होती है। आपने बिल्कुल ठीक बोला, या तो एक नॉलेज नहीं होती है या फिर वो उनको भांग से डर लगता है। ये 2 ही कारण होते हैं। आपने दूसरी, आपकी केस स्टडीज के अंदर जो दूसरी बात निकल के आई वो मेरे को ये निकल के आई कि जो भांग होती है, जो मेडिसिन है, ये आपकी नॉर्मल आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ मिलके एज ए कैटलिस्ट काम करती है। अगर आप सोचो कि आप सिर्फ उनको हम हेम्प की दवाई दे दें या हम सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई दे दें तो उसका अपना एक असर रहेगा डेफिनेटली, लेकिन जब हम उन दोनों को इकट्ठा जोड़ते हैं तो उसका जो असर होता है, जो आप जैसे कह रहे थे कि 4 महीने का असर 1 महीने में आ जाता है, तो वो चीज एक बहुत जरूरी चीज है। और यही मेरी डॉक्टर से भी मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, और आपने भी आई थिंक यही चीज बोली है। तो मैंने ये समझा इसके अंदर कि जो डॉक्टर्स हेम्प को यूज करना चाहते हैं, जिनके पास हेम्प को यूज करने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो बिना डर मेडिसिन को किसी भी अच्छी कंपनी से, और मैं तो चाहूंगा अनंता से ही ले, लेकिन कहीं से भी वो मेडिसिन को जब प्रोक्योर करे तो वो अपनी करंट प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर जो उनके मेडिसिन ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, जब वो उनके अंदर, क्योंकि उन ट्रीटमेंट्स में उनको आइडिया होता है कि पिछले 1 महीने में क्या असर हुआ है, पिछले 2 महीने में क्या असर हुआ है, उसके अंदर जब वो हेम्प की बेस्ड मेडिसिन को इंक्लूड करेंगे और उसका असर जब देखेंगे, तो ये जो हम कैटलिस्ट वाली बात कर रहे हैं कि वो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को इम्प्रूव कर देती है, उसका असर जब उनको नजर आएगा तो फिर उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इसके बारे के अंदर, और फिर वो अपने पेशेंट को भी उतने कॉन्फिडेंटली समझा पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं डॉक्टर साहब। तो ये एक बहुत बिल्कुल सही बात है, और मैं बहुत मतलब मेरे को सुन के बहुत खुशी हुई कि आपने त्रिलोक्य विजयवर्टी से और फिर उसके बाद पीआरसी और उसके बाद VJ75 जो है, इन मेडिसिन को जब आपने इस्तेमाल करा तो उसके बाद आपको उनके रिजल्ट्स और बेटर मिले। और एज अ कंपनी हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा बुके ऑफ मेडिसिन क्रिएट कर दें जिसके अंदर हमारे पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड कैप्सूल्स हो या क्लासिकल मेडिकेशंस हो या सबलिंगुअल टिंचर हो, और कल को जाके हमने टॉपिकल एप्लीकेशन पे रोल ऑन्स बनाए हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इस साल के अंदर या कोशिश करके मैक्सिमम अगले साल तक वो अपना बुके अपना पूरा क्रिएट कर दे कि जब एक डॉक्टर हमारे साथ कनेक्ट हो तो उनको हेम्प बेस्ड मेडिसिन के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये इसके अंदर मैं आपकी बात तो सारी डॉक्टरों में यही बताना, मतलब बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स एक सेशंस डॉक्टर्स को जरूर अटेंड करना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं, जो बडिंग डॉक्टर्स हैं, मेरे पास बहुत से यंग लड़के आते हैं जो स्टूडेंट हैं या जो बाहर के हैं, बड़े ग्रुप्स में हैं, वो देखते हैं मेरे को बोलते हैं सर हम ना भांग की दवाई बेचना चाहते हैं। अरे
आपका कंसेप्ट कुछ और है, आप भांग की दवाई को यूज करिए, देयर इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। कुछ लोग चाहते हैं कि उससे ना उनकी सेल बढ़ जाएगी, क्या होगा, अरे भांग को आप भांग को पवित्र मान के, भांग को ऐसी चीज समझ के यूज करिए कि वो भांग की मेडिसिन, एज ए मेडिसिन उसको यूज करिए, और फिर उसके जो आप रिजल्ट्स देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। और लेकिन पहले अपना डर निकालिए, आपका डर निकलेगा तो आप पेशेंट का डर निकालेंगे, और पेशेंट का डर तब तक नहीं जाएगा जब तक आपको आपकी पैथी पे, आपको अपनी नॉलेज पे, और आपको आपकी मेडिसिन पे जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग टू अ पेशेंट। आप मिक्स कर रहे हो, आप दो एलोपैथिक दोगे, दो आयुर्वेदिक दोगे, और बीच में भांग दे दोगे, और इंटरेक्शन हो जाएगी पेशेंट। मेरे पास बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे हमने वो किसी डॉक्टर ने दिया था, नींद ज़्यादा आना शुरू हो गई, तो भाई आप और क्या मेडिसिन खा रहे हो। उन्होंने ना एक वो वाली मेडिसिन भी दी थी, अंग्रेजी मेडिसिन दी थी, तो मैंने कहा भाई आप एक क्यों खा रहे हो, क्योंकि हमारा जो कैनाबिड सिस्टम है, जो बॉडी का, जिसके साथ भांग का रिलेशन है आयुर्वेद के साथ मिलके, क्योंकि हर्बल एंड मिनरल जो आप आपस में मिलेंगे शोधित होने के बाद, उसका अलग काम है। अगर आप टिंचर्स को यूज कर रहे हो और उसके साथ आप एलोपैथिक दे रहे हो तो उसका अलग काम है। तो बेसिकली पहले अपनी नॉलेज को ग्रूम करिए, फिर उसके बारे में पढ़िए, और फिर देखिए, हाँ अगर फिर भी साइड इफेक्ट आ रहा है देन डोज ऊपर नीचे करिए, क्योंकि देखिए डोज पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, लेकिन कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थैंक्स विक्रम जी, अगर आप पूरा बके ला रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, लेकिन बके एक बहुत अच्छा बगीचा होगा, और उसको बगीचे में पहुंचने के लिए अगर उसमें रास्ता नहीं होगा, आपने एक बगीचा लगाया, उसमें आम लगाए, सेब लगाए, लीची लगाई, फूल लगाए, आपने संजीवनी लगा दी, और वहां तक पहुंचने के लिए अगर रास्ता नहीं है तो उस बगीचे का कोई फायदा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप, हम और भी जो लोग हैं वो सिर्फ अपने आप को ना बढ़ाएं। देखिए मैंने अब यहाँ भी, मैंने अब अगर मैं अनंता के साथ कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ अनंता की मेडिसिन यूज नहीं की है, मैंने और भी कंपनी की, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने और भी कंपनी की है। तो अगर आपको उस बगीचे को अगर दुनिया को दिखाना है और अगर यूज करना है, तो वी ऑन द होल, हम डॉक्टर्स कम्युनिटी, यू ऑल द कंपनीज, अपना सेल्फ ईगो छोड़कर, कुछ यहाँ सेल्फ ईगो को छोड़कर, सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर, ऑन द होल अगर हम इस पे चलेंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि इंडिया सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 5 साल में, लोग 50 कहेंगे ना, मैं 5 साल में अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स सारे एक साथ हो जाए, आयुर्वेदिक हेम्प कंपनीज एक साथ हो जाए, और इसको ओटीसी ना होने दें, वन वर्ड, इसको ओटीसी ना होने दें, और पर्सनल, अगर हम पर्सनल इंटरेस्ट अपने छोड़ दें, we will, hemp industry will be the world's largest industry। और इंडियन हेम्प इंडस्ट्री मस्ट, इतना आयुर्वेदिक डॉक्टर है हमारे इंडिया में, अगर हर एक डॉक्टर सिर्फ एक हेम्प की मेडिसिन लिखना स्टार्ट कर दी ना अगर जिस दिन, तो समझ लो कि हेम्प रेवोल्यूशन हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए, यही विजन है डॉक्टर साहब। इसीलिए मतलब एज अनंता, एज अ कंपनी, हमारा जो मेन फोकस, हमारा जो मेन क्राइटेरिया है यही है कि हम एक इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग डॉक्टर कम्युनिटी को जनरेट करें, मतलब खड़ा करें, और इस मेडिसिन को एज अ मेन स्ट्रीम लाइन मेडिसिन के अंदर लेके आए। और इसका जो ये टैबू है, देखिए अभी कुछ टैबू भी है, जैसे आपने मेंशन करा था कि जब ये पौधा बैन कर दिया गया था 1985 में, तो उसके बाद इसके ऊपर काम, रिसर्च वगैरह सब बंद हो गई थी, और फिर उसके बाद एक टैबू जनरेट हो गया था इसका। जबकि वो सारे टैबू अगर देखे जाए तो अल्कोहल के ऊपर जनरेट होने चाहिए थे, बाकी चीजों पे होने चाहिए थे, जो कि इस पे नहीं हो पाए। तो ये अब जब हमने, अब ये हमारी थोड़ी बैड लक है ना, कि जब वो सारा हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो वो बाहर से घूम के वापस आता है, तभी हमारे को उसकी वैल्यू होती है। तो ये इसके साथ भी, हेम्प के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कुछ। लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि जिस पोजीशन पे हमारी इंडस्ट्री है आज की डेट के अंदर, और हमारी जैसी कंपनियां हैं कुछ हिंदुस्तान में जो अच्छा काम कर रही हैं, एंड हमारा स्पेशली अनंता का जो हमारा मेन फोकस है वो यही है कि हम एक ऐसी डॉक्टर कम्युनिटी बनाएं जिसके अंदर मैक्सिमम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हों, और उनकी जो नीड्स हैं हम उनको कैसे केटर कर पाएं, उनको कैसे हम सॉल्व कर पाएं। इसीलिए डॉक्टर साहब अगर आप देखेंगे तो मतलब हमारा जो मार्केटिंग सेल्स बजट होता है ना, जो जनरली लोग इन्फ्लुएंसर्स या एड्स या इन चीजों पे खर्च करते हैं, वो सारे पैसे हमने ना डॉक्टर कम्युनिटी के ऊपर डाइवर्ट करे हैं, और उसका हमें बहुत फायदा भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स इन चीज को अप्रिशिएट करते हैं। अब अगर मैंने एप्लीकेशन बनाई है अपनी, जो एक डॉक्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद टूल है, जिसके अंदर वो रिकॉर्ड कीपिंग से लेके, डोजेज से लेके, प्रोडक्ट से लेके सारी चीजें कर सकता है, तो ये पहला स्टेप है, और ऐसा कोई एप्लीकेशन अभी हिंदुस्तान में अवेलेबल है नहीं। तो ऐसी चीजें करके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और हम जिन भी स्टेट्स में जिन डॉक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट देते हैं उनको। तो हमारा आइडिया यही है, देखो हमारी ग्रोथ आपकी ग्रोथ से अलग नहीं हो सकती। अगर आप डॉक्टर्स ग्रो नहीं करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, तो हम जाके मेडिसिन मार्केट में नहीं बेच सकते। तो ये बात हमने बहुत शुरू में रियलाइज कर दी थी, और तभी हमारा 100% फोकस आप जैसे डॉक्टर्स के ऊपर है कि हम अपना
इंडिविजुअल रिलेशनशिप और एज अ कम्युनिटी रिलेशनशिप हम इसको आगे कैसे मैक्सिमाइज कर पाए। इसीलिए जो अभी डॉक्टर जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी इस हमारी संभाषण सुनते हैं, उनसे काफी पॉजिटिव फीडबैक आता है। और हमारा पर्पस और हमारा विजन ही यही है कि हम हर एक दिन या हर एक हफ्ते कोई ऐसा टॉपिक उठा के लेके आए जिसके बारे में से डॉक्टरों का डर निकले, डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि हाँ ये मेडिसिन अब प्रॉपर्ली मेन स्ट्रीम के अंदर अवेलेबल है। उसके लिए जितने क्वेश्चन, जितनी चीजें चाहिए हैं, अब ये आज का जैसे सेशन है, जितने डॉक्टर्स देख रहे हैं, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा ये सेशन खत्म होने के बाद देखेंगे। तो ये चीज जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी, तो मुझे लगता है कि हम आप जिस टारगेट की बात कर रहे हैं, हम उसके अंदर काफी तेजी से बढ़ पाएंगे उसमें। तो यही हमारा मेन पर्पस है डॉक्टर साहब। एंड योर सेशन वाज वेरी वेरी इंसाइटफुल। आई होप जितने डॉक्टर्स जुड़े हैं उनको काफी नॉलेज मिली होगी इनसे, स्पेशली विद योर केस स्टडीज। दिवेश जी, अगर थैंक यू सर, थैंक यू जी क्वेश्चंस अगर हैं तो प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए। नहीं, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और सारे लोग बहुत ही क्लियर है। हाँ, अभी मेरे को आया था एक्चुअली, अभी इसके अंदर मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ सबको, मैं एचओडी हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, जब मैं कुछ सिखाता हूँ तो वो आंसर जब नहीं देते ना, मैं बोलता हूँ दो ही लोगों को आंसर नहीं करते। एक या तो कुछ ज्यादा समझ आ गया है या कुछ समझ नहीं आया है। यहाँ मुझे लगता है शायद कुछ ना आया है। नहीं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। डॉक्टर स्टडीज को देखेंगे तो आई थिंक दे विल गेट इट वेरी नाइसली। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू देवेश जी एंड थैंक यू टू इंडियन वैद्य। अगर विक्रम जी अगर हम लाइव नहीं होते ना तो आई विल मैं यहाँ अभी दिखाता सबको। आई मीन माय क्लिनिक ओनली, मेरे पास कितना हेम्प है, मेरी क्लिनिक हेम्प से भरी पड़ी है। लेकिन मैं लाइव में आई वांट श्योर डॉक्टर साहब, जिन भी डॉक्टर्स को ये मेडिसिन समझ में आ गई है और जो अपनी मेन प्रैक्टिस के अंदर इसको यूज कर रहे हैं, बेसिकली मेरे पास जब पेशेंट आता है ना तो वो ऐसे देखते बोलता है डॉक्टर साहब सिर्फ भांग, तो मैं बोलता हूँ भाई मैं भांग वाला डॉक्टर हूँ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और जिनको भी प्रैक्टिस समझ में आ गई ना, रेवेन्यू तो एक चीज होती है डॉक्टर साहब, डेफिनेटली वो उसके अंदर हेल्प करता ही है, लेकिन जो असली रेवेन्यू एक डॉक्टर का निकलता है ना, अगर आपने 10 लोगों को जिनकी प्रॉब्लम जैसे आपने समझाई, जहाँ पे प्रॉब्लम उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, आपने उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया, तो वो 10 पेशेंट्स जब 100 लोगों से बात करते हैं ना, वो है आपका असली रेवेन्यू। वरना एक पेशेंट को 10,000 रुपए की या 50,000 रुपए की मेडिसिन बेचने से ना आपकी प्रैक्टिस चलती है ना मेरी कंपनी चलती है। ये तो जब लोगों को फायदा होगा और उनको इस बात पे समझ में आएगा कि हाँ इससे फायदा है, एक बार बेच दोगे, एक बार बेच दोगे, दूसरी बार अगर उसको रिजल्ट नहीं मिला तो वो नहीं आएगा। और 10 को नहीं। अच्छा देखो, एक 5 मिनट का टाइम लूंगा मैं अपने इसमें। हमेशा सबको एक चीज बोलता हूँ, जो सुन रहे हैं, जितने भी मेरे आयुर्वेदिक फ्रेंड्स हैं, जितने भी कोलीग, सीनियर जूनियर जितने भी हैं, आप एक चीज नोटिस करना, हमेशा आपका जब भी पेशेंट आएगा, बहुत रेयर होगा जो फर्स्ट इंस्टेंस में आपके पास आएगा। आपके पास जब भी आता है वो आएगा बहुत जगह दिखा के। अच्छा उसमें क्या होता है, आपको जब फाइल देखते हो ना, आप देखोगे अच्छा आप इस डॉक्टर के पास गए थे, हाँ क्या हुआ, नहीं डॉक्टर इससे रिलीफ नहीं मिला, मैंने वो डॉक्टर के पास गया, फिर मैं इस डॉक्टर के पास गया, फिर मैं इसके पास गया, 5 6 7 8। अब क्या होता है आयुर्वेद में जब वो आता है तो अब अच्छा मान लो कभी कभार क्या आता है, घर वाले या कोई जबरदस्ती उसको लेके आता है, चलो आयुर्वेदिक, वो बोलता है डॉक्टर साहब नहीं मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई थी, मुझे रिलीफ नहीं मिला। तो डिफरेंस आप नोट करिए कि डिफरेंस क्या है वहाँ। इन एलोपैथिक दे चेंज द डॉक्टर एंड इन आयुर्वेदा दे चेंज द पैथी। उसने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई, उसने डॉक्टर से नहीं खाई, उसने किससे खाई वो जाने, डॉक्टर से भी खाई होगी, ऑनलाइन खाई होगी, कैसे भी खाई होगी, लेकिन द कंसेप्ट इज नहीं डॉक्टर साहब मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई है। और वहां पर मैंने कहा भाई आपने तो ये 5 डॉक्टर खाई, नहीं इस डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ा, मैं इसलिए दूसरे डॉक्टर के पास गया। और हेयर क्या होता है, हमने मेडिसिन खाई है, देयर वी चेंज, जो पेशेंट है इन एलोपैथी दे चेंज द डॉक्टर एंड इन आयुर्वेदा दे चेंज द पैथी। आयुर्वेद छोड़ के अच्छा अब मैं होम्योपैथी खा लेता हूँ, अब मैं यूनानी खा लेता हूँ, अच्छा अब नहीं ना, अब ना आजकल को कोरियोप्रैक्टर आ रहे हैं, कोई ये आ रहे हैं, अब मैं वो करवा लेता हूँ। तो डॉक्टर आयुर्वेद में चेंज नहीं करेगा। और आपके पास सिंगल चांस है, यू हैव दैट चांस, जो आपके पास आप बोलोगे कि हाँ बहुत प्रैक्टिस है, जितने भी यहाँ बोलते होंगे हमारी बहुत प्रैक्टिस है, अगर वो प्योर आयुर्वेद कर रहे हैं ठीक है तो बहुत अच्छी बात है और उसको कंटिन्यू रखना। नहीं तो मिक्सोपैथिक वालों को मैं डॉक्टर नहीं मानता। अगर आप आयुर्वेद कर रहे हो और अगर आपके पास पेशेंट आयुर्वेद के लिए आ रहा है और आप फिर उसको स्टेरॉइड दे रहे हो, देन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यू आर जस्ट आरएमपी। और अगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब एक बंदा आयुर्वेद के पास आता है तो सिंगल चांस होता है, वो सिंगल चांस है और आप उसी चांस को आपको कैप्चर करना है, यू हैव टू कैप्चर दैट। और उसके लिए विजया तो फिर अमृत है ना, भगवान ने दिया है, शिव का मूल है। अब आप शिव से कहाँ जाओगे,
जी, ये सागर मंथन वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगी मेरे को इस बात की नॉलेज नहीं थी, बट यस। अरे मैंने बोला ना, अगर मैं इतना हेम्प के बारे में पढ़ चुका हूँ पिछले 2 साल में, पहले भी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही हेम्प पे है, मतलब मैं पढ़ाता भी हेम्प हूँ, हमारे जिसमें मैंने पीजी किया, एमडी रसशास्त्र हूँ, तो हम हेम्प बड़ा यूज करते हैं। लेकिन 2 साल में मैं इतना इसके बारे में पढ़ चुका हूँ कि मैं खुद हैरान होता हूँ रोज जब नई चीज पढ़ने को मिलती है। अरे यूएसए का जो फर्स्ट फ्लैग था वो हेम्प से बना था, हेम्प के फाइबर से। जी अमेरिका का फर्स्ट फ्लैग। हाँ बिल्कुल है। तो अगली बारी आपके साथ सेशन हम हिस्ट्री ऑफ हेम्प पे रखेंगे फिर। आई थिंक वो बढ़िया सेशन रहेगा, काफी बात होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू देवेश जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।